in this. He had written papers. He had made presentation in Nair Baroda. Even Railway Board is aware about him. He is very passionate about him. So I take this opportunity to welcome him, and he will be giving you some useful insights to take the matter forward. So I request Mr. Pratham Agarwal to start his presentation and guide the participants. Thank you, sir. Good morning to all. As PC sir has just said, I'm Pratham Agarwal. I have served as ADN Ongole of Vijayawada Division, South Central Railway for 3 years, from 2016 to 2019. During that time, I was working with the state government with regard to Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, and we were successful enough to create software development was there, website creation was there. We have even worked with the policy also. We have modified the policy and come up with a new policy. So without further delay, I would start my presentation. uh, uh, can everybody see the presentation, please? Yes, yes, yes. Okay. Moving on, before I start the presentation, I would like to inform you that there is no need to write down anything at all. Everything has been uploaded on the Google Drive, the details of which are reflected right on your screen. The Google Drive contains practically every information regard to South Central Railway, over 5,000 photographs, all policy documents, everything you can find. So moving further, next slide. Before I tell about the details of Manrega, I would like to briefly, just in a few lines, encapsulate what Manrega is. Manrega talks about giving 100 days of employment to all adults in a rural household for unskilled works. The funding pattern is very interesting in Manrega. Let's suppose that a labor gets 200 rupees per day for executing work. So for a financial year, he will get 100 days of labor. So the fund value is 20,000. So the labor who employ or register for the scheme, the fund value gets generated. And once this fund value gets freezed, it gets transmitted to the upper levels of the government where it gets sanctioned. So it's a bottom down approach kind of a process in Manrega. Moving further, the policy level. Now we'll be discussing how the policy, what was the current policy and how it has evolved in South Central Railway. The first document is this. Can everybody see this document, please? Is this visible? Excuse me. We are able to see fully. Sir? It is visible. Your presentation is visible. The document, of course, not visible. Document is. Okay. I think only link is visible. Yeah, link is visible. Link is visible. Link is visible. Yeah, this is visible, right, sir? This policy documents now. Yeah, right now it's visible now. Okay, so the policy of Manrega basically was taking place from 2014 to 2018. In the 4 years previously, there were 10 letters which were issued between the Railway Board and the Ministry of Panchayati Raj and Rural Development. You can see the first of the letter here. The date is somewhere around 2014, which has been highlighted. So these are a compilation of 10 letters, as you can see. Yeah, so as you can see, these are the compilation of 10 letters, all pointing out to the type of works which can be taken, the funding pattern and the implementing agency. I will move on to the most important letter, which is
This is the most important letter in the scheme of Manrega. In fact, this is the document which has set in place the entire Manrega scheme across railways. As you can see, the letter is written by the Ministry of Rural Development. Uh, so the letter has been written by the Ministry of Panchayati Raj and Rural Development by the Joint Secretary. As you can see, the Joint Secretary has written to the Principal Secretaries, the Secretaries and the Commissioners of the Rural Development of all states and UTs. This letter was iconic in a lot of respects. The three aspects of this letter I would like to cover. These are the most important aspects. One is the identification of works. There are six works you can see. The number one is construction and maintenance of approach road for level crossings. Number two is construction and maintenance of approach roads to railway stations. Number three is developing and cleaning silted waterways, trenches, and drains along the track. Number four is repairs and widening of existing railway embankments, cuttings with clearing of vegetation growth. Number five is plantation of trees. Number six is protection work of existing railway embankments. These six works were identified. The first aspect. The second aspect was the funding pattern. Now the funding pattern is this. You can see the C point, labor and material component of works will be met from Manrega. So it clarifies that the material component will also come from Manrega, not just the labor component. This is an essential line. The number third item is which will be the implementing agency, and here you can see DP is the PIA. You can see here Gram Panchayat is the principal implementing agency. So this clarifies the entire scheme. Now I'll move on to the presentation. So as you can see, I'll just move on. So as you can see, the initial policy which was discussed between the Railway Board and the Ministry of Panchayati Raj Rural Development via that letter which was dated 6th April 2018 talks about three aspects. The six works which have been freezed. The second point is the labor and the material component will be met from Manrega, and the third is the Gram Panchayat will be the implementing agency. Now, what South Central Railway did was issued a local circular, which is our task in the initial phase right now. This is our task right now, is to get this issued. As you can see, this is a letter from the government of Andhra Pradesh. The letter reference is to that letter only, which was which is the 6th April 2018 letter. You can see here, and a letter from my CE Works has been written. So what we did was a copy paste of the previous letter only, but the letterhead has been changed. You can see the government of Andhra Pradesh, which is very important. The same activity we have to get it done in the state of Maharashtra also. Now moving on. Now the structure, I have been interacting with a lot of ADNs, probationers and senior officers, and I found that a lot of people face difficulty in understanding and really realizing whom to approach in the district administration for NREGA. Now I'll brief it up on what the NREGA administration structure is. थोड़ा 19-20 का फर्क हो सकता है हर जगह, बिलीव मी, ये थोड़ा बहुत चलता रहता है, बट मेजॉरिटी सेंस में यही स्ट्रक्चर रहेगा ओवरऑल. The state council comprises of the ministers. We have the principal secretary who is an IAS, the commissioner is an IAS, the director NREGA will be an IAS, the district collector will be an IAS, and the additional district program coordinator who is the CEO Zilla Parishad. He in most of the cases he will be an IAS.
Next is we have an additional district program coordinator, PD Dwama. You can see on your right hand screen. He is a senior public service commission officer of the state. This is an important, he's an important fellow with regard to policy developments. Now I have highlighted this MPDO. Please understand that he is the most important officer for ADNs. He is like a junior skill officer in the state administration. So what railway has in railway working has one headquarters and one field unit or division unit. Exactly the same we have in NREGA. Under the CO Zilla Parishad, the MPDO, we have the field unit, the division unit. And under the PD Dwama, project director, we have the headquarter unit. So MPDO. Yes. MPDO is what, sir? Sir, any questions? MPDO is the most important person in our hierarchy. We should approach him. In fact, I would give one part of the learning which I had in my interactions was that district collector will not honor you in the manner which you are expecting. He will lose. He is losing funds to you. Once you approach him, you ask him for money. You ask for convergence scheme. He doesn't gain anything. He will lose money and he will get no glory out of it. So it is best to avoid him. Let the people from the lower staff speak for you, speak for railways, rather than the other way around. You approach the district collector. I have heard instances where district collector has humiliated AENs. They have been made to sit for maybe 2-3 hours at a stretch. And once they entered the chamber, they were just not thrown out, but they were just shown the way without any commitment whatsoever. So it is best to target the MPDO because he is the right person to do so. Under the MPDO, we have 4 people. The EGS engineer stands for Employment Guarantee Scheme Engineer. He is like a PWI or IOW for us. Then we have the technical assistants and the field assistants. These are contractually hired staff. We have the Panchayat secretary, who's an elected fellow for 2 years. He is not important to us that much. The program manager and the program officer are like supervisors at headquarters. So I believe this would clarify the structure of MNREGA. Moving on. Now, to be effective, we need to build in trust in these kind of schemes. The allocation will only come when the officer concerned has some idea of your vision and some realization of what your work is. So what I had done for the in the second year tenure, I had started meeting everybody across the state, every person I could find who's important for my hierarchy. So these are the photographs of the meetings I have conducted. I have represented railways in Gram Sabha, Gram Panchayats, Zilla Parishad, even block development meetings, even coordination meetings held by collector also. So these were trust building exercises to make them aware that we are there for them. Once these exercises were conducted, I had developed good rapport with a lot of people, and especially one of the mandals MPDO became a good friend of mine, and we had a discussion with each other, and we realized that these works were being taken up for the first time in Indian Railways. Those 6 works which I had just shown you, the railway board, the Ministry of Panchayati Raj works, 6 works, they were being taken up for the first time in Indian Railways, and we were not sure whether they can be done. And secondly, from our railway side, we were very afraid of, or we were very apprehensive about the safety issue, because huge number of people are going to work beside the track. So we were a bit worried. So what we did was, on discussion with MPDO Singrai Konda, we have conducted a pilot project. In the pilot project, we got deployment of 170 labor for all the works for 3 weeks. So once I got the allocation, we lined them across the track, as you can see, and we counseled them on safety workings beside the track. We then started scrutinizing their musters, getting acquainted with the working pattern of their labor. Then we started deploying them on the works. As you can see, this is the before work photos. This is desilting of an RUB.
As you can see, the RUB is silted up, the ventway is silted up because of the rain cuts which have taken place beside the bank. So we deployed them, removed the silt and filled up all the rain cuts. Similarly, these are all the cess work photos you can see. This is all pilot project. Here also you can see that we are clearing the jungle and improving upon the cess here also. Some videos also you can see. And kindly observe that all this he had done despite language barrier. He had done all this in Andhra, and he did not know Telugu. And the other side people, they did not know Hindi or English. ఈ నరేగా వర్క్స్ ఈ రైల్వే స్థానంలో ఎప్పుడు మొదలెట్టారు? So these are the few videos of the work which has happened there. Moving forward, the what happened was, once the work was done, the pilot project, we documented the entire challenges which we had faced during our working there. These are the three challenges I could list out. I'll just brief it up. But before that, I just want to say that in the railway system of working, we all understand that we are able to get the work done by maybe screaming, shouting, or even showing, गुस्सा आ जाता है and करा लेते हैं किसी तरीके से. But यहाँ पर इन लोगों के साथ you cannot shout, you cannot scream, you have to have that discipline, क्योंकि ये एक voluntary and untrained workforce है जिनके work ethics हमसे बहुत different है. हम लोग PWI और मतलब ट्रॉली मैन और इवन ट्रैकमैन को डांट फूट के करवा लेते काम, बट इनके साथ नहीं होगा. इनफैक्ट आई हैव सीन इंस्टेंसेस वेयर वी हैव शाउटेड एट देम एंड दे हैव रिटेलिएटेड, वर्बली असॉल्टेड आल्सो सम ऑफ माय पीपल. सो आप वो तरीके की जो कंप्लायंस चाह रहे हैं इनसे, वो सब नहीं मिलेगी. यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू टीच देम हाउ टू डू द वर्क एंड एक अच्छे से माहौल में आपको इनको काम कराना पड़ेगा ऐसे. नेक्स्ट इज दीज आर वेरी इलिटरेट पीपल एंड इनको काम कराने के लिए यू हैव टू शो देम हाउ टू डू इट. लाइक सेस रिपेयर में आपको उनको टैंपिंग रैमिंग दिखानी होगी कैसे करना है, तब जाके वो समझते हैं. And one of the interesting aspects which I faced in this pilot project was ये लोग बहुत आसानी से ट्रैक पर आ जाते हैं. इन लोगों को बहुत मजा आता है ट्रैक पे बैठने के लिए, बिकॉज ट्रैक जनरली एक एलिवेशन पे होता है. यू विल फाइंड रेलवे ट्रैक्स आर जनरली एलिवेटेड सो एज टू प्रिवेंट नॉर्मल ट्रेसपासिंग. एंड मैं कोस्ट के पास था, तो कोस्ट के पास लैंड ब्रीज सी ब्रीज होती रहती थी, तो यू गेट अ वेरी panoramic view sitting on the track and there is a good breeze which goes around. So people used to really enjoy sitting and smoking and doing whatever nonsense activities they could find. So what happened was it became a big challenge to me कि उनको हटाऊं कैसे, क्योंकि वो लोग ट्रैक पे हमेशा आते थे एंड अगर कोई भी ट्रेन आई एंड it is a matter of few seconds only that you lose your life. So it was a big challenge. So this point came up to our DRM sir and he discussed at length. And he said that why don't you take a quotation for it and hire retired home guards and military के जो लोग होते हैं जो रिटायर हो गए उनको हायर करके इनको स्कूपी में लगा दो इनकी. But somehow we as a unit, my DM sir said कि नहीं, it is not a feasible solution because if you do it then it will not last. It's better that we think for alternate means. Subsequently what we did was we started interacting with the labor जो है, and we were very fortunate to find some of the retired PWay staff
in those units, labor units. तो उनको हमने we made them mates for their own labor units. और once they were made mates, उसके बाद we could rest assured, we could conduct our work smoothly. मुझे कोई टेंशन नहीं रही उसके बाद, चाहे वो 6 लोग हो, चाहे वो 6000 लोग हो, कितना भी काम करें, एक पीवे का आदमी अगर आपके सामने आपका मैनेज कर रहा है काम, तो we can be rest assured that work will be done. So these challenges were documented and we moved ahead. अब जब ये सब हो गया, उसके बाद एक MPDO ने जब इतना सपोर्ट करा, तो subsequently I have documented this exercise and went across to meet each and every MPDO with the entire documentation. सबको फिर मैंने ऑन बोर्ड लिया from 1 to 10. मेरे सेक्शन में 10 MPDOs थे. So I brought all 10 on board and subsequently I asked all their engineers, their PWAs and the IWs जो corresponding analogous होते हैं जो वहाँ के, उनको बुला के मैंने ट्रॉली कराई पूरे सेक्शन की, to make them aware of what the section difficulties and the challenges are. So these are the photos of all the trolley inspections and the site investigation जो हमने करी थी. During those meetings, ये जो हमने ट्रॉली इंस्पेक्शंस करे थे, आई रियलाइज कि वी कुड टेक अप अ लॉट ऑफ मोर वर्क्स. जैसे आप समझिए कि प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन वर्क्स होते हैं, प्लेटफॉर्म रेजिंग वर्क्स होते हैं, इवन न्यू बैंक कंस्ट्रक्शन. जैसे मेरे सेक्शन में एक PSR लगा था ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांजिशन पोर्शन ऑफ कर्व से पॉइंट एंड क्रॉसिंग टेक ऑफ कर रहा था. So the crossover had to be shifted 168 meters so that we could shift it to the circular portion of curve and वो PSR निकल जाए. अब now जो बैंक कंस्ट्रक्शन था वो हम मनरेगा में प्रपोज करें. सिमिलरली एक मेरे यहाँ एग्रीमेंट था 20 लाख का जो मुझे मेरे DN ने दिया था, दैट टॉक्ड अबाउट ब्रिज कंप्लीशन ड्राइंग्स. अब वो ब्रिज कंप्लीशन ड्राइंग के लिए हम लोग एक लेबर हायर करते थे और वो फावड़े से या कोई हैंड इक्विपमेंट से वो डिग करता था, फाउंडेशन नीचे देखते थे एंड देन वी यूज्ड टू मार्क इट ऑन द शीट. तो सेम एक्सरसाइज लेबर इंटेंसिव वी कैन ऑफलोड इट टू मनरेगा. इवन जो हमने ट्रैक्स के बीच में, इट्स अ डबल लाइन ट्रैक, बिटवीन द ट्रैक्स इफ मशीनरी कैन नॉट कम एंड आपको सेस रिपेयर करना है, देन यू रिलाई अपॉन लेबर ओनली. सो दिस कैन बी ऑफलोडेड टू मनरेगा. So जब subsequently when we started doing trolley, we found कि there are a lot of many works which we can take up, मतलब expanding the scope of the 6 works to many works. In the course of that time, I also had interactions with the senior officials, and in that process, I got across 2 documents which are very wonderful and very, very amazing in what they explain us. Number 1 is permissible works list. रेलवेज में जैसे USSOR होती है, वैसी नरेगा की एक परमिसिबल वर्क्स लिस्ट है. As you can see, this is the नरेगा परमिसिबल वर्क्स लिस्ट. तो यू कैन सी कि ये जितने आप देखेंगे वर्क्स हैं, इन्हीं से आप पिकअप कर सकते हैं. सो मैं सेंट्रल रेलवे को पैरेलल में डिस्कस कर रहा हूँ. पहले तो हमें वो पॉलिसी लानी है जो स्टेट लेवल की आनी चाहिए. उसके बाद हमें ये जो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स है उनको पकड़ना है. जैसे ये हैं, ये सारे लिस्ट ऑफ वर्क्स आंध्रा में हैं, ये आप करवा सकते हैं अंडर नरेगा. द सेम लिस्ट आई हैव टेकन फॉर सेंट्रल रेलवे, मतलब महाराष्ट्र के पास भी है वो लिस्ट. उसमें से हमें पिक एंड चूज करना है कि कौन से फेवरेबल वर्क्स हैं हमारे सेक्शन के लिए. सो यू कैन सी देयर आर 260 वर्क्स इन आंध्रा. Similarly, there will be a file for Maharashtra also. So इसमें से हमें choose करने हैं which are relevant to our section and for railways. So this is number 1 document which I got hold of. Number 2 is this plantation का document है. This talks about कि plantation कैसे होती है नरेगा में. Let me be very clear, इसमें जो plantation का जो policy है that is very evolved as compared to railway. रेलवे का ये कोर बिजनेस भी नहीं है, इसलिए आई अंडरस्टैंड कि रेलवे इस पे इतना पैसा नहीं खर्च कर सकता है. बट फॉर मनरेगा इट्स अ प्राइम वर्क. एंड मनरेगा में देयर इज अ 3 पॉइंट स्कीम व्हिच टॉक्स अबाउट प्लांटेशन पॉलिसी. नंबर 1 इज 3-year मेंटेनेंस पीरियड. मैंडेटरी है ये क्लॉज, ये लिखा हुआ है ये आपके डॉक्यूमेंट्स में. नंबर 2 इज 80% सर्वाइवल रेट. इसका मतलब है कि अगर 100 प्लांट लगाए जाएंगे, वो 80
प्लांट सरवाइव करने की इंश्योर करेंगे। अगर 20 से एक भी ज्यादा मरता है प्लांट, तो वो रेलवे को या जो भी कन्वर्जिंग डिपार्टमेंट है उसको पैसा देंगे इन द फॉर्म ऑफ अ चालान और वॉट एवर मीन्स दे हैव डिसाइडेड अपॉन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिकॉज ये एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी मनरेगा डिपार्टमेंट पे ले आता है अगर ऐसा होता है तो। And the third item is watch and ward. Basically, they will put a person from the village who will continuously water those plants, who will protect it against cattle grazing, who will protect it against any kind of mishap. So ये तीन aspects पे rural मनरेगा की plantation policy चलती है. Now this document elaborates upon कि क्या type of plantation available हैं. So you can see एक horticulture plantation है. सिमिलरली यू कैन गो, आप देखेंगे एवेन्यू प्लांटेशन है, ऐसे आप देखेंगे होमस्टेड प्लांटेशन है. देयर आर 18-20 टाइप्स ऑफ प्लांटेशन. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि प्लांटेशन कितना इवॉल्व है मनरेगा में. प्लीज हैव अ लुक एट दिस. आई विल डिस्कस दिस वन ऑफ द एवेन्यू प्लांटेशन. एज यू कैन सी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज 3 years. उसके बाद है आपका कॉस्ट ऑफ पिटिंग, प्लांटिंग, वॉच एंड वॉट, फर्टिलाइजर्स, वाटरिंग चार्जेस आर बीइंग पेड फ्रॉम मनरेगा. नेक्स्ट इफ वी मूव अहेड, आप देखिए प्लांट की स्पीशीज भी प्रेफरेबली चूज कर रखे हैं. ये इंपॉर्टेंट है. वॉच एंड वॉट पेमेंट फॉर 400 प्लांट्स अप टू 100 days per year. 100 days into 205 rupees, that is 20,500 into 3. इतना 3 साल का ये कॉस्ट आ गया. ऐसी वाटरिंग चार्जेस लगा रखा है. ऐसी आप फर्टिलाइजर्स का देखिए. सो द एंटायर कॉस्ट फॉर 3 years, ये दिस इज 3,11,000. सो यही आपको उठा के डालना है. जब भी आपको प्लांटेशन के लिए आप उनको स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोच करेंगे तो यू गेट दिस डॉक्यूमेंट एंड यू टेक दिस एस्टिमेशन कॉस्ट एंड गेट इट इनपुटेड इनटू योर एस्टिमेट. तो आपका सैंक्शन होगा तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें जो इसके साथ होती हैं वो सब इन्वॉल्व हो जाएंगी. सिमिलरली आप ये देखिए और भी हैं. ये मेंटेनेंस पीरियड, ये देखिए मेंटेनेंस डिटेल्स, हर चीज का इन लोगों ने ब्रेकडाउन दे रखा है कि कैसे काम करना है, क्या मोडालिटीज रहेंगी काम करने की. ऐसी ये देखिए ब्लॉक प्लांटेशन इन कम्युनिटी लैंड्स. आप प्लांट्स का स्पीशीज भी चूज कर सकते हैं राइट नाउ. आप लोग एक मतलब इवन वी कैन डू वन थिंग, हम लोग सॉइल इन्वेस्टिगेशन एग्रीकल्चरल लैब में करा सकते हैं एंड जो फूड्स और जो प्लांट्स फेवरेबल हैं वो चूज करके हम वो प्लांटेशन करवा सकते हैं. एंड वन ऑफ द आइटम्स आई कुड फाइंड इंटरेस्टिंग वाज दिस विलेज पार्क्स. ये देखिए 9th item is village park. The intention was कि हर एक रेलवे कॉलोनी में एक विलेज पार्क बनाया जाए. एंड इसमें बहुत सारी अच्छी आइटम्स हैं which is like you can see. देखिए the benches, there will be 4 precast concrete benches amounting to 40,000 which will be met from मनरेगा. Even the cost of iron gate, सब कुछ इसी में फाइनेंस हो जाएगा. एंड आई कैन शेयर सम फोटोज विथ यू. ये जो आप this is the some photos of the village parks which was being developed in one mandal. As you can see, we can develop the same thing for our railway colonies also. ये देखिए. So basically what happened was कि वो जो पुरानी पॉलिसी थी इनिशियल, उसको लेते हुए with these internal documents in hand, I had a meeting at a state officials के साथ एक meeting रखी and we had a trolley inspection and as you can see he is the additional commissioner of मनरेगा and he is the project director. We had a trolley inspection and we discussed at length कि ये चीजें हम लोग incorporate कर सकते हैं, नए works ला सकते हैं क्या. And then we had a meeting in my chamber with the program managers, the plantation managers and the TCS officials. And finally we have come out with a new policy for the state of Andhra Pradesh. This is the new policy. ये देखिए, this as you can see this is a new policy which is dated 24/11/2018. इसमें आप references देखिए. This is important to understand. The reference number 1 is that 6/4/2018 letter of the Ministry of Rural Development. The second letter is the South Central, वो जो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे निकाला था, 10/9/2018. And there is a third letter which I had written asking them to incorporate new works in this scheme. Can everybody see this policy, new policy?
ये नई पॉलिसी है जो अप्रूव्ड है आंध्र प्रदेश के लिए। एंड इसमें आप देखिए एज यू कैन सी द 6 वर्क्स जो ये थे ABCDEF, इनको हमने न्यू वर्क्स डाल के रीनेम कर दिया रेलवे जार्गन के हिसाब से। रेलवे की जो टर्मिनोलॉजी है उनको लेते हुए वी हैव रीनेम्ड इट। So we have desilting of waterways of bridges, RUVs, pipe culverts, box culverts. The second item is strengthening by widening of railway embankment. The third is trench cutting along railway boundary. The fourth is recharge structures to functioning borewells and dried up borewells, desilting of open wells, block plantation, village parks and railway colonies, linear plantation and connecting roads to level crossings up to bitumen level. As you can see, 6 works and 9 works कर दिए, रेलवे जार्गन के सूट वर्ड्स कर दिए हैं। और इसी पॉलिसी के साथ साथ व्हाट वी डिड वाज वी हैव क्रिएटेड सॉफ्टवेयर्स। आप ये पॉलिसी में देखिए आगे। यस क्या है कि एस्टिमेट्स जो बनते हैं मनरेगा में दे आर मेड ऑनलाइन, दे हैव एन ऐप फॉर इट। ये आई विल शेयर द लिंक फॉर द ऐप आल्सो। ये है दिस इज द ऐप। ये जो आप वेबसाइट देख रहे हैं इसमें आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दिस ऐप इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंप्लीट एंड सिंपल टू यूज आल्सो। आप इसको देख लीजिए emuster.in आंध्र प्रदेश। सो once this app is opened up, you can see that यस ये जो ऐप में हमने ये सॉफ्टवेयर्स इंटीग्रेट कर दिए हैं। सो बेसिकली जो 9 वर्क्स थे उन 9 वर्क्स के जैसे लेट अस गो थ्रू वन बाय वन। डिसिल्टिंग ऑफ वाटरवेज ऑफ ब्रिजेस, पाइप कल्वर्ट्स, बॉक्स कल्वर्ट्स है। इसमें हमने क्या करा, इंट्रोडक्शन इज टीपी नंबर एंड लैंड ओनरशिप गवर्नमेंट डाल दिए। अब डिसिल्टिंग में वी आर डूइंग एवरीथिंग बाय मतलब बेसिकली डीलिंग विद द मड। सो बेसिकली क्यूबिक मीटर में पेमेंट होता है। सो व्हाट वी नीड टू इनपुट इज लेंथ, ब्रेथ, डेप्थ। आप ये डाल देंगे ऑटोमेटिकली एस्टिमेट फ्रीज हो जाएगा। सिमिलरली स्ट्रेंथनिंग बाय वाइडनिंग ऑफ रेलवे एम्बैंकमेंट, तो आप ये देखिए कि वी हैव पुट इन टीपी नंबर एंड द लैंड ओनरशिप हैज बीन चेंज टू गवर्नमेंट। अब आप इसमें यू कैन ऑपरेट, यू कैन पुट इन चेनेजेस, जैसे ये चेनेज डाल दिया है 0 to 60 मीटर। इसमें आप टीपी नंबर डालिए, सॉइल टाइप डालिए, लेंथ, ब्रेथ, डेप्थ डालिए, सो यू विल गेट द एस्टिमेट जनरेटेड इमीडिएटली। सिमिलरली ट्रेंच कटिंग अलोंग रेलवे बाउंड्री, similarly recharge structures to functioning borewells, इनके टेम्पलेट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, नो चेंजेस वर रिक्वायर्ड। ऐसी ब्लॉक प्लांटेशन में हमने इसको स्प्लिट कर दिया रेजिडेंशियल एरियाज में, मिड सेक्शन एरियाज में। रेजिडेंशियल एरियाज में वी हैड चोजन 50% टिम्बर एंड 50% फ्रूट बेरिंग। फ्रूट को भी हमने चूज करा लिया था कि मैंगो, सपोटा, गुआवा ही डालेंगे। मिड सेक्शन में वी हैव चोजन हाई डेंसिटी प्लांटेशन एंड नॉर्मल ब्लॉक प्लांटेशन। The modalities of these plantation policies will be followed by that जो document मैंने आपको दिखाया था पहले। Similarly, we are moving to village parks and railway colonies. This is a new item which has been introduced. Linear plantation, station approach roads में 1 row, high density plantation में 3 row या 6 row. Similarly, ये bitumen road up to level crossings, ये भी एक item है। There was I would like to discuss this item. This has a very classy story behind it, and it was a political hot potato in Andhra Pradesh also. 90-10 की बात करी गई है। 90-10 I'll explain. Let's suppose if we construct a 100 rupee road in under this bitumen road, then 90 rupees will be paid by the Manrega department and 10 rupees will be paid by the converging department, which in our case will be railways. ये उनका एक तरीका था टू गेट इनटू रेलवेज। दे द स्टेट डिपार्टमेंट थिंक्स दैट रेलवे इज फ्लश विद फंड्स, वो पैसा कमाती है इसलिए वो पैसा दे भी सकती है। और बिटुमन रोड कंस्ट्रक्शन इज बेसिकली अ मटेरियल इंटेंसिव काइंड ऑफ वर्क। तो उनको लगा कि इसमें से हम थोड़ा पैसा अगर रेलवे से लेने लगेंगे सो दे विल आल्सो बी एबल टू फाइनेंस मोर वर्क्स। बट आई हैड resisted this proposal because this is their way of getting into our finances and we don't want to let them interfere in our finances. So what happened was initially they were asking for 60-40, where 60 labor वो दे देंगे, 40 जो material cost होगा वो हमें bear करना है। But after long negotiations we brought it to 90-10. But even 10 we were not ready to pay because it will open up Pandora's box. So what we did was ये 10 rupees की जगह we started giving them
class 3 crushed rubber pads as a part replacement for bitumen. हमारा वेस्ट प्रोडक्ट यूज हो जाएगा बिटुमेन में, एंड एट द सेम टाइम वी विल हैव टू बेयर नो कॉस्ट टू दिस. सो इसके लिए व्हाट वी डिड वाज, हमने एक ट्रायल लेवल पर हमने शुरू करा था ये, बट क्या हुआ वहां पर विजिलेंस आ गई. विजिलेंस आई मीन टू से उनके यहाँ सोशल ऑडिट कहते हैं, what in railways is called vigilance, there is a social audit there. So the people who came in social audit asked us the legality of this work. They said कि आप ये कैसे कर सकते हैं, where is the code for it. So we could not present any code, so we asked them कि you give us some time to prepare a code. इस code के लिए then I started approaching all the IITs and a lot of places, but somehow वो interest मिला नहीं because they were all asking for funds. Finally we have approached CRRI and they gave उन्होंने 3 साल का एक project report दे दिया and 1 crore का इन्होंने वो दे दिया है project cost. So that proposal has been sent to RDSO for further processing. In the meantime, no roads are being constructed right now. अभी इस item को hold कर दिया गया है. So moving on, ये जो So as I said कि जो policy नई थी वो भी बना दी गई है. We have incorporated new works in this system, and with this now we will proceed to the most important part of the presentation, which is the website creation. देखिए ऐप में मतलब इसका स्ट्रक्चर ये हो गया, ऐप में अंदर हमने नए नए सॉफ्टवेयर डाल दिए, सॉफ्टवेयर से एस्टिमेट जनरेट कर लिए. अब वो जो एस्टिमेट जनरेट करते हैं और जो वर्क होता है उसका ऑनलाइन मॉनिटरिंग कैसे करें, उसके लिए 2 वेबसाइट्स बनाई गई थी, एक आंध्र प्रदेश लेवल पर और एक ऑल इंडिया लेवल पर बनाई गई थी. सो आई विल शो यू द आंध्र प्रदेश वेबसाइट. Can everybody see this, please? सब लोग देख सकते हैं ये? Yes, please. Yes. Yes, please. Yes, yes. Okay. It is. Okay. So मैं आपको ले जा रहा हूँ वेबसाइट पर. नरेगा AP सर्च करेंगे अगर गूगल में तो the first hit which comes is the main website. इसमें आप जाएंगे, so then you will find ये MIS रिपोर्ट्स में जाइए. हाँ इसमें जाएंगे तो then we have the good governance initiatives R19. It's a drop down menu. If you go to R19.2, a new screen will open up. ये जो वेबसाइट क्रिएट करी गई थी आंध्र प्रदेश की ड्यूरिंग दिस टाइम, श्री चंद्रबाबू नायडू वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, and he had a vision of creating a centralized dashboard for monitoring all works. जितने भी वर्क्स होते हैं उसके लिए वो एक सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड बना देते हैं. तो यही उन्होंने इसके लिए भी करा है. ये देखिए रेलवे प्रोजेक्ट है, दिस इज द सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड. दिस इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड वेरी डिटेल्ड. एंड इसमें आप देखिए कि ब्रॉड कैटेगरी नेम रेलवे प्रोजेक्ट है, स्टेट इज आंध्र प्रदेश. द अपडेट हैज हैपेंड टुडे मॉर्निंग इटसेल्फ. ये हर एक 24 घंटे में हो जाती है वेबसाइट अपडेट. अब यू कैन रिमेंबर वो जो हमने 9 वर्क्स डिस्कस करे थे, द 5 वर्क्स हैव फाउंड देयर वे इनटू द कैटेगरीज एंड यू कैन सी द वर्ड बाय वर्ड ये डाले गए हैं वर्ड. ये आप इसमें आप ऊपर देखिए, दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन कॉलम, दिस इज द इन प्रोग्रेस कॉलम एंड दिस इज द कंप्लीटेड कॉलम. So what you find is all these 5 type of works amounting to 661 works. Total इनका estimated amount है 33.65 crores that have found administrative sanction. Next is 167 works amounting to 63 lakhs are under progress right now. And similarly completed works अभी ये update हुआ नहीं है properly. तो बेसिकली आप ये देख सकते हैं, दिस इज अ कंप्लीट सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड फॉर मॉनिटरिंग ऑल वर्क्स ऑफ नरेगा व्हिच आर बीइंग कंडक्टेड इन कन्वर्जेंस विद रेलवेज. नाउ इफ आई प्रोसीड फर्दर, द ब्यूटी ऑफ दिस वेबसाइट विल अनफोल्ड. आप ट्रेंच कटिंग लॉन्ग रेलवे बाउंड्री में चलते हैं. लेट अस टेक दिस वर्क फॉर एग्जांपल. इफ वी क्लिक ऑन दिस, द नेक्स्ट स्क्रीन विल ओपन अप.
ये हो गए डिस्ट्रिक्ट्स आ गए आपके। तो आंध्र प्रदेश हैज 13 districts and all. Let me take you to my district, Prakasam, where the works were done. Prakasam district click kara, तो then you have mandals. Once you go to mandal, I'll take you to Ulapadu. Then you have panchayats. हाँ, panchayat. Then I'll take you to Chaglu. अब ये जो खुला है, this is the work ID. You can see this is this work. अब मैं work ID को click करूँगा, it will take at least 5 minutes to open up. So I have already opened this up. This is the screen which will open up. A beautiful design by the TCS people. You can see everything very transparently. वो work ID देखिए, वो डाली हुई है, name डाल रखा है, location डाल रखी है, work status in progress, कब ये estimate create हुआ है 25 जनवरी, कब इसको टेक्निकल अप्रूवल मिला 28 जनवरी, कब कमेंस हुआ है 12 फरवरी, एक्चुअल स्टार्ट डेट 25 फरवरी, कितना अनस्किल्ड अमाउंट है, कितना स्किल्ड अमाउंट है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, कितना परसेंटेज कंप्लीट हुआ है, सब इसमें दिया हुआ है। देन द नेक्स्ट, ये हमने इंट्रोड्यूस कराया था हमारे रेलवेज वालों ने, फार्मर डिटेल्स। We wanted transparency in this entire scheme, so we have introduced this where we have asked the farmer की ID डाली जाए, उसकी फोटो भी डाली जाए. So this will take up slowly and steadily in South Central. Next is work estimate. जो आपका पूरा estimate जो बना है वो पूरा breakdown कर रखा है. It is transparent. सब कुछ दिखेगा इसमें. Next, a wonderful feature is this week wise progress. आप देखिए work progress, ये 29 to 5th कितना परसेंटेज है, कितने man days हैं, ये देखिए everywhere, every week. एंड आप अगर इनकी रिपोर्ट्स खोलेंगे तो रिपोर्ट्स में भी आ जाएगा सारी डिटेल्स. सिमिलरली आपका मटेरियल डिटेल्स, ये सारा मटेरियल डिटेल्स दे रखा है. So everything has been broken down. There is, मतलब जो ये, I have had interactions with a lot of people, senior officers also. What I found was कि there was a lot of resistance to accept Manrega because of the corruption and the nonsense work which people usually claim. But I found कि ठीक है, वो सब चीजें are part of maybe the structure which is there, but we as officers can incorporate the good qualities of the scheme, which is this. ये जो वेबसाइट बनाई गई है ये बहुत ट्रांसपेरेंट है इन एवरी वे. सिमिलरली ये जो वेबसाइट बनाई गई है ये सिर्फ आंध्रा के लिए बनाई गई थी. सिमिलरली इट वाज इनकॉर्पोरेटेड फॉर तेलंगाना आल्सो, क्योंकि तेलंगाना में भी जो वेबसाइट का जो मैनेजमेंट करते हैं वो टीसीएस वालों को दिया गया है. आंध्रा और तेलंगाना को छोड़ के द रेस्ट ऑफ द इंडिया इज में जो वेबसाइट जनरेशन है वो एनआईसी कर रहा है. सो हेलो, हाँ, तो ये हो गया नरेगा एट आंध्रा. नाउ आई विल टेक यू टू नरेगा एट ऑल इंडिया लेवल. हमने एक ऑल इंडिया वेबसाइट भी बनाई है. आई विल टेक यू देयर. ये गूगल में गए, वी विल टाइप इन नरेगा एनआईसी. So the first hit is the Narega NIC. ये all India website है. ये अभी recently revamp हुई है, last year only. If we go in reports for MIS, so we'll go financial year पिछले साल का ले लीजिए and states all ले लीजिए. ये देखिए, दिस इज दिस वंडरफुल थिंग. ये आप R6 में वर्क प्रोग्रेस में सीरियल नंबर 23, यू कैन सी रेलवे रिलेटेड वर्क्स. इसको आप क्लिक करेंगे, सो इट विल टेक सम टाइम टू, अच्छा खुल ही गया. तो दिस इज प्लीज एवरीबडी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. दिस इज द बैकबोन ऑफ द एंटायर नरेगा. ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, ये सब इसमें दिखेगा. ये ऑल इंडिया लेवल की वेबसाइट है. इसमें इवन महाराष्ट्र में भी आप देखिए, they are showing 8.6 करोड़ का एक्सपेंडिचर दिखा रहे हैं. ये देखिए, ये तो आप ये समझिए कि 8.6 करोड़ का एक्सपेंडिचर हुआ कहाँ है. दैट इज द क्वेश्चन व्हिच आर जूनियर स्किल ऑफिसर्स शुड आस्क द मनरेगा पीपल. आप इसमें भी जा सकते हैं. इफ यू क्लिक इन महाराष्ट्र तो उसकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो खुल जाएंगी नीचे नेक्स्ट पेज पर. तो ऑल एडीएम्स ऑफ सेंट्रल रेलवे शुड नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ आस्किंग कि 8.6 करोड़ रुपीस कहाँ गए, कहाँ खर्चा हुआ है हमारे यहाँ. यू सी, आप देखिए लास्ट में टोटल में देखिए, दे हैव क्लेम टू स्पेंड 279 करोड़ ऑन द कन्वर्जन स्कीम ऑफ रेलवेज.
ये पैसा गया कहाँ, कहाँ स्पेंड हुआ है, ये सवाल है सबको, जो सारी स्टेट्स में। इनफैक्ट यही तो जानना है कि ये 300 स्टेट में काम कर रहे हैं, बट ये कहाँ कर रहे हैं, एग्जैक्टली कैसे कर रहे हैं, ये जानना है। देयर आर इंस्टेंसेस वेयर आई हैव हैड कि लोगों को पता नहीं था बट काम हो रहा था कुछ जगह, तो वो क्लैरिटी लानी है। अब यू सी आपने डिस्ट्रिक्ट्स में गए, तो महाराष्ट्र में वी हैव गॉन, तो महाराष्ट्र में लेट अस टेक बीड ले लेते हैं। सो देयर इज एन एक्सपेंडिचर ऑफ 2 करोड़ इन बीड। अब ये देखिए ब्लॉक्स आ गए, आप ब्लॉक्स में जाएंगे तो आप परली में चले जाइए, तो परली में ये आपके पंचायत आ गए। सो द बेस्ट पार्ट इज कि आप इस वेबसाइट से एक्सट्रैक्ट कर लीजिए जो जो पंचायत आपके सेक्शन में आती है, उन पंचायत में जाके यू कैन टॉक टू देम एंड आस्क देम कि ये पैसा खर्च कहाँ हुआ है। जैसे लेट सपोज ये लटजारी पंचायत है, इसमें 1.12 लाख रुपीस का खर्चा हुआ है, यू प्लीज आस्क देम कि कहाँ हुआ ये खर्चा, वेयर इज द लोकेशन, प्लीज शो अस। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ मनरेगा। मतलब आप ये देखिए, ये वेबसाइट से ही आप सारा काम करवा सकते हैं, मॉनिटरिंग भी इससे हो सकती है। ये सीनियडियन शोलापुर, ये लटजरी कहाँ पड़ता है बीड डिस्ट्रिक्ट में? सर मुझे आइडिया नहीं है सर, पता करना पड़ेगा सर। नहीं नहीं, ये बड़ा अच्छा इंसाइट इन्होंने दिया है, उससे ये लग रहा है कि काफी काम किया जा सकता है। आपके यहाँ पे चल रहा है तो अच्छा। ये महाराष्ट्र के जरा 1-2 और खोलो यार, जो इसमें ज्यादा फिगर दिख रहा है ना। जी सर, मैं खोलता हूँ। थोड़ा नांदुरा खुलवाइए ना सर, कल लास्ट ईयर हमारे यहाँ काम हुआ था नांदुरा में। नांदुरा का डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए। डिस्ट्रिक्ट मलकापुर ये पड़ेगा सर। हाँ ये शेगा बुल्ढाना पड़ेगा सर। बुल्ढाना ऊपर होगा। नंदूरबार में सिर्फ ब्लॉक अकल नहीं, नंदूरबार नहीं, वापस जाइए, प्रीवियस वन वापस जाइए। हाँ सर, नहीं ऊपर है वो। ये सीरियल नंबर 7 पे जाइए, 7 पे जाइए, सीरियल 7 पे। 7 बुल्ढाना इसमें हाँ खोलिए इसको। हाँ ये खामगांव निकालिए। हाँ ये खामगांव हमारे यहाँ लास्ट ईयर प्लांटेशन हुआ खामगांव में। अच्छा खामगांव, अच्छा खामगांव की 4.5 लाख हुआ। 4.5 लाख का। ठीक, ये सर ये है, ये 6 पंचायत से इनमें काम किया। जरा डिस्ट्रिक्ट वाइज दोबारा से जाओ, वापस जाओ डिस्ट्रिक्ट वाइज। जी सर, काइंडली गो टू द डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल्स। यस सर, दिस इज द डिस्ट्रिक्ट वाइज। बैक हाँ सर, इसमें हाईएस्ट एक मिनट, इसमें हाईएस्ट देखिए महाराष्ट्र में, और कहाँ पे है ये सर? 247 चंद्रपुर खोलिए, चंद्रपुर सीरियल 8। नासिक में भी आपने बोल रहा है नासिक में 1000 है। 247 लाख हुआ है इसमें। हाँ बीरू जी, चंद्रपुर खोलो। अरे भाई ये हाँ, अपना माइक म्यूट करिए। सर चंद्रपुर खोल दिया सर। हाँ। डीआरएम के यहाँ से आया है क्या? भाई ये किसी का माइक ऑन है, अपना माइक म्यूट करिए। ये एक मिनट सर, मैं म्यूट कर देता हूँ। आप वहीं से म्यूट कर दीजिए। हाँ वही कर रहा हूँ सर। प्लीज म्यूट ऑल द माइक्स। सर ये है चंद्रपुर, ये दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा है। हाँ जी सर, इसमें सर देखिए भाई सीनियडियन नागपुर। सर देख रहा हूँ अभी स्क्रीन अभी शेयरिंग में हमें टाइम लग रहा है, बट कुछ आया है तो आपका सबसे ज्यादा हुआ है ये 171 हुआ है। ये कहाँ पड़ रहा है? साउली में। ये सब देखिए मैं अरे सुनो, इसमें सारा काम हो रहा है आपके चंद्रपुर से नागवीड़ की तरफ। हाँ ये नागवीड़ सर, ये एससीसीआर में आता है, हमारा बल्लारपुर आ रहा है इसमें। बल्लारपुर में देखता हूँ बल्लारपुर। और नहीं, मेरा एक मिनट, मेरा वही कहना है कि जब एससीसीआर करा सकता है सेम डिस्ट्रिक्ट से, तो आप क्यों नहीं करा सकते हैं? दैट इज एग्जैक्टली द पॉइंट। यस। चलिए वापस जाओ डिस्ट्रिक्ट वाइज। जी सर, ये आगे डिस्ट्रिक्ट सर। ये तो ऐड आ रहा है। नहीं, ये वेट प्लीज। 247 किस में है ये? एक मिनट, स्लो। 201 है बीड में। बीड देख लिया, ये देख लिया,
चंद्रपुर, then Sir, next- 73 lakhs है। नासिक, नासिक देखिए 73, नासिक नासिक खोलो जरा, सर। सीरियल 20, हाँ जी सर, ये सीरियल आ गए, 20। ये आ गए। इगतपुरी, कलवन, नंदगांव। भाई ये माइक, अरे अपना माइक क्या आप म्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? ये किसका माइक ऑन है? इसको बंद कर दो ना वहां सेंट्रली से। सर कर रहा हूँ सर, एक मिनट सर। ये जरा देखिए, ये वापस जाओ भाई। हाँ जी कहाँ सर, गया इस डिस्ट्रिक्ट वाइज? ये रहा सर। हाँ एक मिनट रुकिए जरा। ये 6633 हुआ है त्र्यंबकेश्वर। ये त्र्यंबकेश्वर आपका आता होगा भुसावल? भुसावल त्र्यंबकेश्वर शायद पूना तरफ पड़ेगा सर। मैं देख लेता हूँ सर, क्योंकि हमारे नांदगांव में प्लांटेशन हुआ था सर। त्र्यंबकेश्वर मुझे नहीं आया। अरे आप एक मिनट बंद तो कर दिया मैंने मोबाइल पे। भाई ये कोई एक किसी का माइक ऑन है सर, उसको थोड़ा म्यूट कर दीजिए। इसका माइक ऑन है, म्यूट कर दीजिए। उसको मैसेज भेजो ना, किसका माइक ऑन है? सर मैंने बंद कर दिए सर, कर दिए सर। हाँ अभी ठीक है। हाँ सर। ओके चलो सर ये त्र्यंबकेश्वर के पंचायत से। मैं नहीं कंट्रोल करता। हाँ भाई, ये त्र्यंबकेश्वर बताइए भुसावल। सर हमारे यहाँ नांदगांव में हुआ था, त्र्यंबकेश्वर का आइडिया नहीं सर। उसमें डिस्ट्रिक्ट में कौन सी पड़ती है त्र्यंबकेश्वर ब्लॉक में? मैं वो चेक करके बता देता हूँ सर। इसमें प्लांटेशन हुए थे सर नांदगांव से आगे। अरे यार बात यह है कि जहाँ पे ये ऑलरेडी प्रोग्रेस दिख रही है वहां पे टू टेक द मैटर फॉरवर्ड विल बी इजियर। दैट इज व्हाई आई एम रेजिंग दिस। यस सर, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी प्रोसेस थोड़ा सेट हो गया है। दैट इज माय पॉइंट। अच्छा प्रथम सर, ये जो इसमें किसी रेलवे ऑफिशियल से भी साइन कराते हैं क्या? ये कितना कितना काम हुआ, कितनी लेबर नहीं। लगी, क्या लगा? नहीं सर, और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग इन चीजों में नहीं पढ़ना है सर। ये चीज ये सब चीजें हम नहीं। हमारे यहाँ जो काम हुए थे सर लास्ट ईयर, तो उसमें जो है इन लोगों ने सोशल फॉरेस्टेशन के थ्रू लिए थे सर। यस। तो अब अभी क्या हुआ है कि ये सिर्फ आप लोग सिर्फ प्लांटेशन को नहीं, अब तो सारे वर्क्स करा सकते हैं। वो जो 6 वर्क्स हैं वो सारे आप पकड़ के करवा सकते हैं। और अब साउथ सेंट्रल में तो 9 वर्क्स हो गए, इवन इवॉल्व कर दिए गए हैं। तो आप लोग मतलब नए वर्क्स ले सकते हैं। प्लांटेशन दे आर डूइंग इट अंडर सोशल ऑब्लिगेशन, दे विल ऑलवेज डू इट। बट सेस वर्क अगर आप करा सकें या ट्रेंच कटिंग करा सकें, ये सब वर्क्स हाई वैल्यू वर्क्स हैं। इन्हीं में फायदा भी होगा रेलवे को। और ये लोग कर चुके हैं, ये क्लेम कर रहे हैं हर जगह। ये देखिए, ये वेबसाइट में यही दे रखा है कि दे आर क्लेमिंग दे हैव डन इट। तो इसी को चेसअप करना होगा बस। अब ये हो गया सर ऑल इंडिया वेबसाइट। अब है नेक्स्ट टीएमएस। टीएमएस में भी इंटीग्रेशन हो चुका है एट द कोऑर्डिनेशन लेवल। कोऑर्डिनेशन सर के लेवल पर टीएमएस हैज बीन इंटीग्रेटेड। तो आई जस्ट ओपन अप द टीएमएस। ये देखिए, ये अंडर द पीसीडीओ वी हैव पीसीडीओ एंट्री। उसमें आप जाएंगे, सो अंडरनीथ इफ यू गो वी हैव एन प्रोग्रेस फॉर मनरेगा वर्क्स। ये देखिए, दिस हैज बीन डेवलप्ड ऑन द लाइंस ऑफ दिस। ये जो आपने देखा था ये वाला ये चीज जो आप देख रहे हैं, दिस इज द ब्लो डाउन अकाउंट ऑफ द सिंगल वर्क व्हिच वी हैव सीन इन द आंध्र प्रदेश वेबसाइट। यही चीज को इन्होंने एक्सपैंड कर दिया है टीएमएस में, लिंक कर दिया। देखिए, सीरियल नंबर, नेम ऑफ डिवीजन, नेम ऑफ रेलवे सब वर्क, नेम ऑफ स्टेट, ये सारा टीएमएस में अवेलेबल है। सो व्हाट अ पर्सन नीड्स टू डू इज अपलोड इट हियर। ये रो ऐड करके आप सीधा का सीधा यहाँ डाल दें, and this will get compiled at every coordination surge level and then it will move to railway board. So basically एक स्टेनो
तो ये ऑथराइज कर दें या फिर अपने डिवीजन में बोल दिया जाए कि उस वेबसाइट को खोले और इस वेबसाइट में कॉपी पेस्ट करें करस्पॉन्डिंग टू जो जो वर्क्स हमारे यहाँ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और आपको ये बहुत इजीली फिर मॉनिटर होता रहेगा। So we have this now. So as I said, ये तीन चीजें कवर हो गई हैं। Now we'll move on further. क्या हुआ था कि जब once the entire modalities of the scheme were in place, we did a Bhumi Puja and an inauguration ceremony to formalize all the works. We have invited the press and the local media also to cover this and give it kind of a massive publicity so that labor get to know कि यहाँ पर कुछ ऐसा काम चल रहा है, and thereby labor pockets get activated. So as you can see, this is the labor, this is the Bhumi Puja works. We have even brought in additional commissioner, project director, everybody came and we have felicitated them and everything we have done that. Now this is the completed work जो मेरे section में हुआ है. I will brief it up कि क्या exactly क्या expect हम लोग कर सकते हैं मनरेगा से. As you can see, this is the land boundary post, ये जो आपका pillar रखा है. And this is the railway track. So from railway track to land boundary post ये हमारा land हो गया. अब इधर से लेके इधर तक ट्रैक तक हमने पूरा का पूरा de-weeding करा दिया, पूरा jungle clearance. And you can see beyond the land boundary post we have the jungle, cut jungle accumulated. Number 2, ये जो land है इसको हमने थोड़ा सा slope दे दिया था so that the water does not accumulate on this land. Number 3, जो ट्रेंचेस काटी हैं, इस ट्रेंचेस का जो एक्सकवेटेड मड है वो हमने यहाँ पे डिपॉजिट करना शुरू करा है. एंड आई हैव मेड इट क्लियर टू ऑल द लेबर कि आप लोग हाफ द हाइट ऑफ द सेस में ही डिपॉजिट करें, सब बैंक बनाएं, सिंपल हाफ द हाइट पे सब बैंक बना दो, देयर इज नो कंफ्यूजन. तो ये काम भी खत्म हो गया. नेक्स्ट इज ये जो ट्रेंच कटिंग का जो वर्क हमने जो ये सोचा था, दैट हैज सम 2-3 आइटम्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद इट. वन इज कैटल रन ओवर केसेस कम हो गए मेरे सेक्टर क्योंकि ये नेचुरल बैरियर क्रिएट हो गया. वो सामने बोलते वो मेरे लिए कुछ काम का नहीं है, वो फालतू के सुनते बैठी हो. तो एज यू कैन सी ये पूरा का पूरा पानी जो है दिस विल गेट एक्यूमुलेटेड इन दीस ट्रेंचेस, और कैटल रन ओवर केसेस भी सब्सिक्वेंटली मेरे कम हुए थे ओवर इन दिस सेक्शन. एंड द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स व्हिच हैपेंड वाज ये जो पानी जो एक्यूमुलेट होता था ट्रेंच में, ये बगल वाले जो फार्म फील्ड्स होते थे ये अपना मोटर एंड पंप लगा के इसको एक्सट्रैक्ट करते थे व्हेन दे वर इन नीड फॉर इट. सो वी डेवलप्ड अ गुड रैपो विद ऑल द नियरबाय फार्मर्स आल्सो. इवन व्हाट हैपेंड वाज ये जो लेबर है जो मेरे सेक्शन में काम कर रही है, ये क्या करते थे, ये जो ड्राइड अप जंगल है ये अपने ट्रैक्टर लेके ले जाते थे बिकॉज दिस यूज्ड टू सर्व एज अ फॉडर फॉर कैटल फीडिंग आल्सो एंड आल्सो एज बर्निंग के लिए, वो जो अपना घर में खाना जो चूल्हा जो जलाते हैं इसी से जलाते थे. सो फाइनली वी कुड फाइंड लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच कुड कम आउट ऑफ दीज वर्क्स. ये देखिए ये सारे वर्क्स सेक्शन में हो चुके हैं ऑलरेडी. ये देखिए हाफ दी हाइट पे बैंक बना दिया गया है, सब बैंक. इवन आई कुड ब्रांच आउट टू SNT ऑल्सो. SNT वाले भी क्या करते हैं, दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ लेइंग केबल अक्रॉस अलोंग द लैंड बाउंड्री, वो भी एक्सकवेट करके फिल अप करते हैं. सो व्हाट दे कैन डू इज एक्सकवेशन मनरेगा लेबर से करा सकते हैं, फिलिंग अप भी मनरेगा लेबर से करा सकते हैं लेटर ऑन. सो द मनरेगा एज अ कॉन्सेप्ट कैन ट्रांसेंड द डिपार्टमेंट ऑल्सो. आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में भी इसमें काम आ सकता है. यू कैन सी दीज आर ऑल द फोटोज ऑफ ऑल द वर्क्स. ये देखिए इस दिन मेरे सेक्शन में 5,922 लेबर था मेरे सेक्शन में, 5,922. I used to get over 400 photographs daily of geotagged photos, सारी latitude, longitude, date and time stamp के साथ. There were approximately 28 workstations, work sites जो मेरे section में opened up थी. This is one of the photographs. So this is the level of monitoring we could achieve in this time.
एंड ये सारी फोटोज हम TMS में भी इंटीग्रेट करे हुए हैं. TMS में भी देयर इज अ कॉलम ऑफ फोटोग्राफ्स. सो ये सारी फोटोज डेली जो आती थी हम वो TMS से लिंक अप कर देते थे. सो द प्रोग्रेस यूज्ड टू बी, देयर वाज नो फॉल्सिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा बेसिकली. अब इनोवेशंस एंड फ्यूचर पोटेंशियल. अब क्या हुआ है कि नॉट जस्ट मनरेगा को मनरेगा की तरह यूज करा गया, वी हैव इवन बीन एबल टू कैप्चर मनरेगा फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स. देयर आर लॉट मेनी स्कीम्स लाइक मनरेगा. आपने अगर सुना हो तो रूरबन. रूरबन स्टैंड्स फॉर रूरल अर्बन. It talks about providing urban amenities in rural areas to prevent migration of people from rural areas to urban areas. Something like providing good roads, public wash toilet, basic passenger amenities जो होती हैं जिससे migration रुके. So what happened was कि under this I could get some 8 crores financed from the state of Andhra Pradesh for redevelopment of circulating areas beyond my railway jurisdiction. Please understand, ये सारे जो works हैं railway jurisdiction के अंदर नहीं होंगे, ये railway jurisdiction से just बाहर होंगे. So you can see, ये देखिए, ये जो first photo है मेरी सिंगरायकोंडा स्टेशन है. The circulating area ends here, ये यहाँ पर उसी के just बाहर ये हमने concrete road का sanction लिया था 39 lakhs का. तो ये देखिए ये रोड बना ली थी, सेंट्रल मीडियन भी एस्टैब्लिश करा था, स्ट्रीट लाइटिंग भी हमने लगवा ली थी. सो व्हाट हैपेंड वाज, स्टेशन तो अपने आप में जैसा है ठीक है, बट स्टेशन का जो अप्रोच था वो बहुत अच्छा हो गया. वी इवन रिमूव्ड इंक्रोचमेंट्स, वी इवन रिमूव्ड नॉट ऑफ जो ट्रैफिक स्नॉल्स होते थे सब हट गए उस समय के लिए फॉर द टाइम बीइंग. एंड ये मुझे सैंक्शंस मिले नेशनल रूरल अर्बन मिशन के फेज 3 वर्क्स में. यू कैन सी नेम ऑफ द ग्राम पंचायत इज सिंगरायकोंडा. आप देखिए एस्टिमेटेड कॉस्ट 10 और 9 39 lakhs. मैंने रूरबन में 50% फाइनेंस कराया, मनरेगा में 50% फाइनेंस कराया. सो यू कैन सी मनरेगा से भी फाइनेंसिंग हो गई, रूरबन से भी फाइनेंस हो गई. मटेरियल कॉस्ट इससे ले लिया, लेबर कॉस्ट इससे ले लिया, तो 39 lakhs रुपए की रोड भी हो गई. ऐसी आप देखिए आगे C102 सीरियल नंबर प्लीज. इसमें देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक वॉश टॉयलेट एट रेलवे रोड सेंटर इन सिंगरायकोंडा ग्राम पंचायत. 10 लाख रुपए की रोड थी, 1 लाख रुपए इसमें करा लिया नेशनल रूरल अर्बन मिशन, 9 लाख रुपए इधर करा लिया. एंड वी कुड गेट पंचायती राज. देखिए पंचायत ग्राम पंचायत फंड से हमें मिल गया पैसा. सिमिलरली वी कुड मूव अप टू स्ट्रीट लाइटिंग, विलेज स्ट्रीट लाइट सिंगरायकोंडा, जो भी मैंने आपको फोटो दिखाई, दैट इज अ 5 लाख रुपए वर्क. तो आधा लाख इधर से मिल गया, 4.5 लाख इधर से मिल गया. सो ब्रेक और मेक कर करके कहीं ना कहीं से वी कुड मैनेज टू फाइनेंस द मटेरियल कॉस्ट ऑफ द वर्क्स. This is the one of the innovations which we could evolve over Manrega. Next is LC closure. I could get sanction for close to 5 LC closures by diversion roads. हम लोगों की रैपो इतनी अच्छी बन गई थी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन वाज विलिंग टू वर्क विद अस. एंड सब्सिक्वेंटली जो फार्मर्स और जो नियर बाय फील्ड के जो LC के पास होते थे उनसे अच्छा मतलब बातचीत होने लगी. एंड फाइनली वी कुड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम देयर साइड. वी कुड गिव देम क्विड प्रो को करके वी कुड मैनेज टू क्लोज, वी कुड गेट परमिशन फॉर 5 LC क्लोजर्स विदाउट अ सिंगल कॉस्ट टू रेलवेज. इवन जो रोड भी बनानी थी डाइवर्जन रोड वो भी नरेगा ही बनाएगा. वो जो आपने आइटम देखा था 9th आइटम जो बिटुमिन रोड का था उसी में हम लोग बनवाते. So with no cost to railways, we could finish off the LC. Next is ये non-fare revenue. Non-fare revenue के लिए I'll take you to this photo. इस फोटो में as you can see we had discussed the plantation policy. अब क्या है कि with this land, ये जो आप देख रहे हैं ये here we are planning to plant species भी choose कर लिए थे. Now हम लोग थोड़ा सा और मतलब इसमें हम smartness ये दिखाए कि we thought of going for what do you say commercial plantation. Why not railway के land में commercial tree plant हो, और जब उनका एक reasonable height आ जाए या maturity आ जाए, then let the local pulp and paper industry come, cut the tree, give us non-fare revenue for that. ये भी एक modality थी जो हम लोग division में pursue कर रहे थे. And we have even called upon the Delta Paperworks and ITC Bhadrachalam hai. We had called them for a meeting.
Can everybody hear me, please? Yes, yes, continue. Okay. Yes. Yes. So in this photo, as you can see, we had we were working towards generating a non-fair revenue model for railways. And सबसे अच्छी बात क्या है, इस non-fair revenue में हमें कुछ नहीं करना होगा, मेंटेनेंस सारा मनरेगा करेगा, प्लांटेशन भी मनरेगा करेगा, दूसरी इंडस्ट्री आएगी, काट के पेड़ अपना चली जाएगी और हमें नॉन फेयर रेवेन्यू दे देगी. तो इट्स अ साइक्लिक मॉडल, चलता रहेगा परपेचुअली. नेक्स्ट नॉन फेयर रेवेन्यू के बाद रबर पैड्स. वी हैड ऑलरेडी डिस्कस ये रबर पैड्स का जो इनोवेशन जो हम बात कर रहे थे. नेक्स्ट इज भुवन. आई थिंक ऑल ऑफ यू वुड बी अवेयर कि ये भुवन एक काफी चला हुआ ये चीज है. दिस इज अ जियो पोर्टल प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय इसरो. अब क्या हुआ है कि मनरेगा में वी हैव स्टार्टेड मॉनिटरिंग द वर्क्स थ्रू द सैटेलाइट. तो इफ यू सी हियर, ये एग्रीकल्चर में जाएं, ऐसे ये एप्लीकेशन सेक्टर्स हैं. इफ यू सी, ये देखिए, सो इफ यू सी एक रूरल का एक हेड है, राइट? ऐसी अर्बन का हेड है, टूरिज्म का हेड है, वाटर. ये रूरल में देखिए मनरेगा है, ये देखिए. सो इफ यू क्लिक दिस, अब इस क्लिक के साथ इफ वी गो टू द डिटेल्स, फेज 1 एसेट्स, फाइनेंशियल ईयर हम लोग पिछला ले लेते हैं. स्टेट इज आंध्र प्रदेश, लेट अस टेक. Then Andhra Pradesh will get highlighted, you can see here. Similarly, if you go to the district, let's suppose if you go to the Prakasam district, so the Prakasam will get highlighted. अभी थोड़ा सा शायद नेट स्पीड कम होगी, बट Prakasam दिखने लगेगा. Similarly, if you go for block, we will go to that Ulava-Padu. आपने देखा होगा जब मैं आपको दिखा रहा था previously. And similarly, if you go to Panchayat, then we can go to Chagalu. At this level, we can go into the depth of it. And इसमें बस हमें ये करना है कि यहाँ पर जो कैटेगरी है, यहाँ पे रेलवे नहीं है. This is the problem we are facing right now, and we need to move across कि जो monitoring system भुवन ने बना रखा है, इसी को हम use करेंगे. But let us introduce a railway head under this. So I had requested Shri Anisur Rahman, who is the GM of CRIS for civil. उनको मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि एक बार अगर भुवन में बात कर लें इसरो में फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस रेलवे हेड, देन एवरीथिंग गेट्स स्ट्रीमलाइंड. हमारा मॉनिटरिंग ऑनलाइन हो गया, हम लोग देख भी सकते काम कैसा हो रहा है थ्रू दिस भुवन पोर्टल. सो एवरीथिंग गेट्स वेरी स्ट्रीमलाइंड. वी डोंट नीड टू गो एनीवेयर. एवरी मॉनिटरिंग कैन हैपन एट द क्लिक ऑफ अ बटन. तो सर मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अब हम लोग अगर इसको भी थोड़ा सा डेवलप कर लें यहाँ पर, so we will have a wonderful system set in place. पूरा हम लोग देख सकते हैं ऑनलाइन. मूविंग ऑन, ये हो गया भुवन का. नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग द. सर एक क्वेश्चन है. हाँ सर बोलिए. ये इसरो की जो वेबसाइट है, हाँ इसमें मॉनिटरिंग में और नरेगा की जो वेबसाइट है उसकी मॉनिटरिंग में क्या डिफरेंस है सर? ये क्या पिक्चर अपलोड करता, कोई सैंपल दिखाएंगे? हाँ सर, हम लोग जूम इन करके ये लोग हमें वो दिखा देगा कि कहाँ का क्या क्या काम हुआ मैप में, बट टोपोग्राफिकली दिखा देगा. It will show a photograph and okay. नहीं मतलब it will show the map. सर वो जो गूगल अर्थ आप यूज करते हैं ना, या वो आप मैप्स यूज करते हैं, वैसे आपको ऊपर से वो मार्किंग्स दिखा देगा, पिन डॉट्स दिखा देगा ग्रीन कलर में कि हाँ यहाँ काम हुआ है, येलो कलर में काम चल रहा है. कोई सैंपल खोल सकते हो अदर देन रेलवे का? खोल के दिखाओ कैसे दिखा. अच्छा सर एक सेकंड सर, वो थोड़ा स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि अभी ये बैंडविड्थ बहुत यूज कर रहा है ये जूम, इस वजह से खुल नहीं रहा. नहीं तो अब तक तो चागलू पे आ जाता, बट वो हो नहीं रहा है सर, थोड़ा टाइम लेता है इसमें. बट आई विल ओपन अप सर. अच्छा एक बार कोशिश नहीं होता तो मूव आगे बढ़ो, कोई बात नहीं. नहीं इसमें मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जो हमारे लोग फील्ड से AENs IOWs वगैरह अटेंड कर रहे हैं, उनको हाउ टू, अपने को बताना है हाउ टू टेक ऑफ. तो ये साइट वगैरह का तो बहुत हो गया, अब मुझे स्टार्ट करना है काम 1 महीने में. तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है, उसकी हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी. तो पहले एक्शनेबल पॉइंट बनाइए बिल्कुल सीक्वेंस में. फर्स्ट स्टेप ये करना है, सेकंड स्टेप दिस, थर्ड स्टेप दिस, फोर्थ इज दिस, फिफ्थ इज दिस. ऐसे करके उनको हमें गाइड करना पड़ेगा कि उन्हें करना क्या है. सर
ये आपने बहुत अच्छा बनाया है कि हमने क्या किया है और इसका क्या पोटेंशियल है। तो ये प्रेजेंटेशन ये बताता है क्या पोटेंशियल है और क्या किया गया है। बट हमारे लोग जो सेंट्रल रेलवे में हैं उसको क्या करना है? अभी मेरे इम्प्लीमेंट कराने जाएगा कोई पीडब्ल्यूआई या आईओडब्ल्यू, उसको क्या करना है? सर इसके लिए मैंने आगे स्लाइड रखी है सर, मैं वो भी बताऊंगा। तो आप उस पे जाइए। अच्छा, आप उस पे जाइए पहले। ओके सर। ये काफी हो गया ऑलरेडी, इतना टाइम नहीं रहेगा। ओके सर, ओके। ये है सर सेंट्रल रेलवे मतलब में। देखिए ये एक मिनट, इस प्रेजेंटेशन को आप मतलब कन्वर्ट करिए एक्शनेबल पॉइंट्स में। ओके सर। स्टेप वाइज एक्शनेबल पॉइंट्स। किस लेवल पे आईओडब्ल्यू पीडब्ल्यूआई को क्या करना है, एईएन को क्या करना है, डीएन को क्या करना है। ठीक है सर, ठीक है। और इसमें मेरा एक सजेशन है कि सिंस यू आर ऑलरेडी हेडक्वार्टर्ड एट अहमदनगर, वी हैव वन assistant engineer of open line also at Ahmednagar, and fortunately Ahmednagar is the district headquarter also. sir. तो आप उसको, नवीन है क्या? Whether Naveen Sharma is there in this VC? नहीं है सर इसमें, वो उसका एलसी का एक ब्लॉक चल रहा है सर अभी, उसमें वो गया है सर। अच्छा ठीक है, तो वो आप उसको लगाइए इनके साथ, और तो he can do hand holding, और वो जो भी रुकावट आएगी वो ये बताएंगे कि अब इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। देखो मतलब द टाइप ऑफ इंटरेस्ट दैट ही हैज टेकन, दैट इज हाउ दिस कुड बी यू सी टेकन सो मच फॉरवर्ड ऑन साउथ सेंट्रल रेलवे। और सेंट्रल में वो वहीं की वहीं खड़े हुए हैं हम लोग। और आप ऐसा करिए, एक आपका इनका जो कमांड जोन है प्रथम का, उसके नियर बाई भुसावल में क्या पड़ेगा, कौन सा एईएन पड़ेगा भुसावल का? एईएन मनमाड़ पड़ेगा सर, और 40 गांव भी पास में ही है सर। तो इन दोनों को बोलिए, मनमाड़ 40 गांव, और उनके जो पीडब्ल्यूआई आईओडब्ल्यूज हैं इनको प्रथम के साथ लगाइए आप। और इधर में शोलापुर से लाइक वाइज आपका एक अहमदनगर हो गया, दूसरा कौन सा पड़ेगा नियर बाई? नियर बाई तो फिर कुर्दुवाड़ी है सर, कुर्दुवाड़ी आना पड़ेगा उसको। एईएन तो मेरा इधर ही क्या है, पूना का एईएन दौंड में बैठ। तो पूना सीनियर डीएन पूना। यस सर। तो आपका जो एईएन दौंड में होगा सर, अभी दौंड में एक गया है ना, शोलापुर से एईएन गया है दौंड में पोस्टिंग। हाँ सर, वो है अभी इसमें अपने मीटिंग कॉन्फ्रेंस में भी है सर, वो एईएन दौंड को रखा है इसमें है। हाँ तो कोई बात नहीं है। तो एईएन दौंड जो है वो थोड़ा इनिशिएटिव लेके और प्रथम अग्रवाल इनको कांटेक्ट करके और थोड़ा उसको आगे बढ़े, मतलब वहां पे थोड़ा इजी रहेगा ना, ही विल गाइड, और उसको तो ये काम करने में मजा आता है, तो वो प्रथम को कोई बर्डन नहीं लगेगा, ही विल एंजॉय इट। तो इसको प्रथम आप जो है अब स्टेप बाय स्टेप एक्शनेबल पॉइंट्स बताइए इसके, जो उनको फील्ड में करने हैं। ओके सर। तो मैं सर और जो हायर लेवल पे एक्शनेबल पॉइंट्स हैं वो आप सीईएसडी को बताइए, या डिविजनल लेवल के हैं तो वो सीनियर डीएन्स का ध्यान लाइए उस पे। जी सर। हाँ तो सर आई टेक ऑन सेंट्रल रेलवे में क्या काम हुआ है अभी तक, क्या स्टेटस है वो मैं बता देता हूँ सर। सेंट्रल रेलवे में सर दो चीजें अभी तक हुई हैं। एक तो एक मीटिंग हुई थी दैट वाज कंडक्टेड ऑन 10th December 2018। ये मिनट्स ऑफ मीटिंग है सर, ये वाला। हाँ ठीक है सर, इसमें मैं आगे चलो सर, यही है बस, कोई हाईलाइट बता दीजिए बस। सर यही है कि एक बार जो सेंट्रल रेलवे में जो पीसी आपके साथ एक आपके लेवल पे एक मीटिंग हुई थी सर, वो एक है। और जो हमने एक लेटर लिखा है सेक्रेटरी पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट को, ये दो, बस उतना ही है सर। अभी तक कोई काम लेवल पे कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर, बस पॉलिसी लेवल पे डिस्कस कर रहा था। नहीं एक मिनट, अभी इसमें इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसके टुकड़े करिए। जो सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर है सर, उसको क्या क्या करना है इसमें सर? उसमें 1 2 3। हाँ जी सर। सर सर ये मैं बताऊं या फिर रहने दूं सर? ये मतलब नहीं आप बता दीजिए, वो हमारे ध्यान में रहेगा। आप पूरा पढ़ के मत बताइए, सिंपल 1 2 लाइन बता दीजिए। ये मीटिंग हुई थी, इसका ये इशू है। अच्छा, इसमें सर क्या हुआ था, ये जो मीटिंग हुई थी ये लास्ट ईयर दिसंबर में हुई थी। इसमें ये जस्ट एक लाइन है विच इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड।
इसमें लिखा है आफ्टर डिटेल्ड डिस्कशन द सेक्रेटरी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हैज एग्रीड टू टेक अप द वर्क्स ऑफ ट्री प्लांटेशन एंड वाटर कंजर्वेशन ऑन रेलवे लैंड एंड फॉर दीज वर्क्स ग्राम पंचायत और लाइन डिपार्टमेंट विल बी द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। पहली चीज। एंड इसमें सेकंड पॉइंट लिखा है इफ रेलवे वांट्स टू वर्क अदर देन दीज वर्क्स देन रेलवे शुड गिव कंसेंट टू बिकम द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। No, that is not agreed. Exactly sir, यही डिसएग्री करना है इसी बात। नहीं ये नहीं है भाई। सुनो चतुर्वेदी जी, आप जो है ये मैटर हेडक्वार्टर से लेना पड़ेगा कि अदर देन दीज वर्क्स, और हमें आंध्रा का पेपर इनसे लेके अटैच करके उनको लगा दीजिए। वो भी लगा दिया सर यही हमने जो ये करा है सर 6 जनवरी को जो हमने लेटर लिखा है ये रहा उसमें यही लिखा है कि रेलवे के तो उसमें ये चीज हमने कवर कर ली है सर। जो है ये कवर लेटर ऑलरेडी हम लिखे हुए हैं। ये लेटर ये रहा सर, ये लिखा हुआ है। नहीं ठीक है, अब इससे एक मीटिंग मांग लीजिए आप सर। अगर अभी कुछ नहीं हुआ है तो इनसे एक मीटिंग फिक्स की जाए ना सर। ठीक है सर। इनसे बोलिए, एक रिमाइंडर सा दीजिए कि हमने ये लेटर लिखा था, उसको अटैच करिए, और पोलाइट सा लेटर रिक्वेस्ट करते हुए कि भाई हमारे वहां से कुछ आया नहीं है और हम लोग इसमें दिक्कत फेस कर रहे हैं और रेलवे मंत्रालय के ये आदेश हैं कि ये सब कराना है, तो आप जरा एक मीटिंग फिक्स कर दीजिए सो दैट मैटर कैन बी टेकन फॉरवर्ड। ठीक है ना? तो एक इससे ये कर लेते हैं, ये हेडक्वार्टर लेवल पे हो गया। आप मुझे नीचे बताइए इसके नीचे क्या करना है सर। बाकी फिर सर एक अभी क्या हुआ है सर, वो जो 6 वर्क्स थे रेलवे बोर्ड ने जो आइडेंटिफाई करे हैं उसको तोड़ के सर एक नई पॉलिसी ले आते हैं सर, क्योंकि क्या है ये जो पॉलिसी लेवल पे चीजें हैं वो हम लोग अब आप ही के लेवल पे हो जाएंगी। जैसे ये है परमिसिबल लिस्ट ऑफ वर्क सर, जैसे ये है सर, ये देखिए ये सारे महाराष्ट्र का है। हाँ ये सर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का परमिसिबल लिस्ट ऑफ वर्क्स है। हम इसमें से चूज कर सकते हैं हमें और कौन से रेलेवेंट वर्क्स लेने हैं। तो वो लेकर सर हम लोग लेटर लिख लेते हैं और एक नई पॉलिसी निकाल देते हैं, क्योंकि जो ऊपर की पॉलिसी जो 6 वर्क की थी वो बहुत ही जनरल है सर। इवन सर उसमें प्रोटेक्शन वर्क का एक आइटम था, प्रोटेक्शन वर्क्स ऑफ रेलवे एम्बैंकमेंट्स। अब सर रेलवे कोड कुछ 35 kg का स्टोन मांगता है सर। अब ये लोग बड़े ओल्ड एंड इनफर्म लोग होते हैं, ये लोग 35 kg का स्टोन उठा ही नहीं सकते। आई हैव ट्राइड टू डू दैट सर, नहीं हुआ था। तो वो सब्सिक्वेंटली वो वर्क हमने साउथ सेंट्रल में गिरा दिया था। ऐसी सर ठीक है, आप जो है साउथ सेंट्रल वाला लेटर देख के और इनसे लेटर बना दीजिए, ड्राफ्ट दे दीजिए CEST को। ओके सर। तो उसमें लेके और वो इस पे भी लेटर चला जाएगा कि हम इसको और इंक्लूड करके और डिटेल बनाना चाहते हैं। हाँ जी सर, यस है ना? And these works are already included in the list of government of Andhra Pradesh, a copy of which is enclosed for immediate reference. जी सर जी। तो ये अगर हो जाए सर तो वी कैन नाउ फुल फ्लेजेड हम लोग फुल स्क्रीन पे ले सकते हैं सर। और नेक्स्ट बताइए और क्या करना है हेडक्वार्टर से? हेडक्वार्टर से यही है सर, और उसके बाद फिर सारे एएनस को बेसिकली सर जाके एक बार कर्टसी मीटिंग करनी है सारे MPDO से। और सब्सिक्वेंट वेट अभी पहले अहमदनगर की बात करो। अहमदनगर का MPDO कौन है, कहाँ बैठता है? सर अहमदनगर का MPDO सर वहीं पे कलेक्टर भवन में बैठता है सर, उससे हम मिल भी चुके हैं, ये मैं मीटिंग भी कर चुका हूँ उससे ऑलरेडी, ये रहा। एंड वी हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन व्हाट हैज हैपेंड इन दिस आंध्रा। आपके बाजू में कौन बैठा है? सचिन पांचाल था सर, वो मेरे साथ था, पुराना जो एएन था यहाँ पे। वी हैव गॉन टुगेदर एंड एक्सप्लेन। उसकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं सर ऐसा नहीं है सर, ही वाज मतलब मिलके काम कर रहा है सर। वो तो फोन पे लगा हुआ है या किसी और काम कर रहा है अपना? नहीं ऐसा नहीं है सर, वो चलो कोई बात नहीं है जी सर। तो हम लोग गए थे चलो सर। अब इसको नवीन शर्मा को लेके जाइए। नवीन गौतम आप नवीन को बोलो जरा। यस सर बोलता हूँ सर। नवीन को बोलो। तो आपका एक अहमदनगर हो गया और एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट बीड है आपका। हाँ बीड भी है सर, बीड में मेरा इनफैक्ट ज्यादा आसान है जाना बिकॉज वो मेरा वर्क स्टेशन उसी के आगे है सर। मतलब यस, तो ये बीड डिस्ट्रिक्ट आपका किस एएन का पड़ेगा भाई? लातूर के पास। लातूर का तो बीड में नहीं है, बीड में नहीं आएगा उसका, थोड़ा पार्ट आएगा सर। नहीं तो इन दोनों को भेजो ना आप। ठीक है, लातूर वाले को भी मैं बोलता हूँ सर, लातूर वाले को भी बोलता हूँ सर। एक मिनट अहमद, ये बीड डिस्ट्रिक्ट में और कौन सा एएन आएगा? एएन फुलवाड़ी के अंडर में आएगा कुछ पार्ट सर।
एएन कुर्डवाड़ी के अंडर में आएगा। हाँ, तो जिसका जिसका ये पड़ता है ना उसको भेजो ना, क्योंकि इस टाइप का कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। ठीक है सर, भेजता हूँ, दोनों एएन को भेजता हूँ सर, उसमें एक मीटिंग करेगा दोनों। हाँ हाँ, और इनके साथ जाए, ये प्रथम अग्रवाल के साथ जाना है इनको। ये सर हमने स्कोप दे रखा ऑलरेडी सारा, ये देखिए हमने ऑलरेडी मनरेगा डिपार्टमेंट में सारा जहाँ प्लांटेशन हो सकते हैं, क्या एरियाज हैं, वी हैव ऑलरेडी सबमिटेड एवरीथिंग। बस इसी का चेसिंग अप चाहिए सर, बस वही करना है हमें। नहीं, अब मुझे बताओ ना, ये चेसिंग अप किस लेवल पे किसको करना है वो बताइए। सर हेडक्वार्टर में तो सर पॉलिसी लेवल पे थोड़ा वर्क करना होगा, और थोड़ा ये मीटिंग्स फील्ड में बताओ, फील्ड का फील्ड में वो सर तो बात हो गई। सर फील्ड में एएम्स फील्ड को का बताइए। पहली चीज तो सर हम लोगों को मिलके एक बार एमपीडीओ से एक मीटिंग रखनी चाहिए सर। एवरी एमपीडीओ शुड नो अस, एंड सब्सिक्वेंटली उनके जो नीचे जो काम करते हैं उनका भी जान पहचान होना चाहिए सर, एंड हमारे सुपरवाइजर्स भी उनसे अक्वेंट हो जाएं। राइट, तो ये कराए, ये इसका मतलब ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में और बीड़ में, दोनों में कराना चाहिए, और दीज टू आर विद इन योर मैनेजेबल रीच। यस सर। मतलब मेरा कहने का ऑलरेडी सर सबसे मिल लिया था, हम लोग मिल लिए थे सर। मैं पिछली बार जो सचिन पांचाल हमारा एएन था उसके साथ मिलके सर हम लोगों ने सारे लोगों से मुलाकात कर ली थी, एंड सारा सैंक्शन भी आ गया था। इनफैक्ट इस साल हमें सर एलोकेशन भी मिल गया है पैसे का फॉर प्लांटेशन एंड ऑल, एंड काम भी चल रहा है। ये देखिए सर, हम ये काम भी चल रहा है, प्लांटेशन का काम सर ऑन वे है, ये वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। उनको एक मिनट, ये कहाँ पे है? ये श्रीरामपुर में हो रहा है सर, श्रीरामपुर है वन ऑफ द तहसील्स, काम चल रहा है। गौतम, अहमदनगर, एएन अहमदनगर के में है सर। उसको मालूम भी है कुछ ऐसा है? हाँ सर, बताया था सर, पता है सर। ये सारी चीजें हमने कर ली है सर, ऑलरेडी प्लांटेशन शुरू करा दिया है, और ये सारी जियो टैग फोटोज भी हो रही हैं ऑलरेडी। ये पाडेगांव, बेलापुर, अहमदनगर, श्रीरामपुर, सब जगह सर पूरे स्ट्रेचेस में अब प्लांटेशन शुरू कर दिया है बिसाइड द ट्रैक। तो बस प्लांटेशन हुआ है सर, अभी तक प्लांटेशन के अलावा कहीं सैंक्शनिंग नहीं मिली अभी तक, बस यही प्रॉब्लम हो रही है। अर्थवर्क, ट्रेंच कटिंग, ये सब नहीं मिल पा रहा है सर, सिर्फ प्लांटेशन करने के लिए रेडी हैं सब लोग। ठीक है, अभी मतलब अभी आज की डेट में जो पॉलिसी है उसके हिसाब से प्लांटेशन एंड वाटर रिचार्जिंग किया जा सकता है, बस उसमें वर्क्स ऐड कराने हैं जिसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट ही रहेगी। यस सर, बिल्कुल सर, दैट इज ऑल, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सर। वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हमें ही बनाना चाहते हैं, बहुत एडमेंट हो रहे हैं इनफैक्ट वो लोग, वही चीज को तोड़ना है सर कि वो नहीं, हम नहीं, ना बने। वो अब नहीं हम नहीं बनेंगे। हाँ जी सर, उनके फंड्स हैं वही रहेंगे, और वो बात उनसे की जाएगी सेक्रेटरी से। हाँ जी सर। हाँ तो अच्छा, साउथ सेंट्रल ने कुछ किया है? साउथ सेंट्रल ने महाराष्ट्र में कुछ किया है? नहीं सर, नांदेड़ में थोड़ा बहुत कुछ चल रहा था सर, बट सब्सटैंशियल तो विजयवाड़ा डिवीजन में ही हुआ है। अच्छा भाई, ये ऑल डिविजन्स सर, हाँ, नागपुर बोलिए। हाँ बोलो नागपुर डिवीजन ने सर हमारा इस साल मतलब लास्ट ईयर में 19-20 में हम लोगों ने मनरेगा के थ्रू ही प्लांटेशन किया था सर। नरखेड़ चांदिल बाजार जो सेक्शन है, और इवन गोधनी के अप्रोचेस में भी हम लोगों ने जो प्लांटेशन किया था वो इसी स्कीम के थ्रू किया था। तो आपका कितना बचा है उसमें 80% से? और वो आपका जो उसमें लिस्ट देखिए ना, कितना खर्चा हुआ है, क्या है उसमें, तो कोई फिगर दिख नहीं रहा। वो देखता हूँ सर, क्योंकि इसमें हम लोग अवेयर नहीं थे। अभी जैसे साइट्स वगैरह से हमको पता चल रहा है, इन्होंने जो बताया है, अभी उससे भी वर्कआउट कर लेते हैं फर्दर हम लोग और क्या किया जा सकता है। अच्छा प्रथम, वो जो आप बता रहे थे जिससे मीटिंग करनी है, क्या डेजिग्नेशन था उसका, क्या ऑफिसर सर? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सर मैंने अभी तक जितनी इंटरेक्शन करी है, सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन जो है वो है कमिश्नर नरेगा। ही इज मिस्टर नायक, ही सिट्स इन नागपुर। ही सिट्स इन सुनो आप कमिश्नर नरेगा से मीटिंग करिए, मिस्टर नायक से नागपुर में। जी सर। सर जी सर। पाटिल आप उससे करिए। जी सर, जी सर। ठीक है। और नहीं, वो जो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बता रहे थे ना, क्या डेजिग्नेशन बताया था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सब एएनएस को? एमपीडीओ सर। हाँ, महाराष्ट्र में भी एमपीडीओ बोलते हैं या कुछ और डेजिग्नेशन है? सर एमपीडीओ होगा या बीडीओ होगा, इन दोनों में से ही टर्मिनोलॉजी होगी सर, कोई ना कोई। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। हाँ जी सर। हाँ, तो ये भाई आप सब जगह कराइए, ऑल ओवर सेंट्रल रेलवे।
जी सर। ऑल ओवर सेंट्रल रेलवे कराए और वर्क्स में जो इंक्लूड कराना है वो हम देखते हैं यहाँ से हेडक्वार्टर से। जी सर। और सर एक चीज और थी सर, ये हम थोड़ा सा एक और थोड़ा बेटर अप्रोच कर सकते हैं इन चीजों को सर। क्या हुआ है सर, मनरेगा का सर सबसे बड़ा इशू ये है कि मनरेगा के अपने आप कोई काम नहीं होते। मनरेगा का फंड हर दूसरा डिपार्टमेंट यूज करता है। मनरेगा को सिर्फ एलोकेशन आता है, जैसे इस साल 60,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने उसे दे दिया है, बट मनरेगा का सारा पैसा दूसरे डिपार्टमेंट यूज करते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये सारे दूसरे डिपार्टमेंट यूज करते हैं सर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे इज द 24th डिपार्टमेंट टू कन्वर्ज। ऑलरेडी 23 डिपार्टमेंट्स पैसा ले रहे थे काम करने के लिए। तो अब सर फाइट क्या है कि रेलवे को पैसा कैसे प्रायोरिटी पे मिले एज अपोज टू द अदर 23 डिपार्टमेंट्स जो इतने इनग्रेन्ड है सिस्टम में ऑलरेडी उनके। तो उसको तोड़ना है सर। तो क्या हुआ था सर, वन ऑफ द एक्सरसाइजेस व्हिच आई हैड अंडरटेकन इन माय जुरिसडिक्शन सर, मेरे जुरिसडिक्शन वाज अ 90 किलोमीटर डबल लाइन ब्रॉड गेज इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक। मेरे सेक्शन में सर 9 स्टेशन थे 90 किलोमीटर में और 36 एलसी गेट्स थे सर। तो मैंने क्या करा सर, ये जो आपको पता होगा सर, ये जैसे स्टेशंस पर ही सर एक शेडी एरिया मिलता है, वाटर ड्रिंकिंग फैसिलिटी मिलती है, रेस्ट करने के लिए भी जगह मिलती है, टॉयलेट भी होते हैं। तो क्या होता है, लेबर पॉकेट्स जो एक्टिवेट होती हैं और जो जनरली काम करना चाहती हैं वो इन्हीं एरियाज में करना चाहती है जहां उन्हें रेस्ट करने की भी जगह मिले, पानी भी मिल जाए, खाने की जगह बैठने की सुकून से मिल जाए। तो ये चीज को देखते हुए सर हमने क्या करा था कि जो फैसिलिटी 1 in 10 किलोमीटर थी उसे मैं 1 in 2 किलोमीटर लिया। मैंने सारे एलसी गेट्स में सर ये फर्स्ट एड सेफ्टी किट बॉक्सेस रखवा दिए थे। ये हर एक एलसी गेट पर एक एफआरपी टॉयलेट सर, ये राइट में ग्रीन स्ट्रक्चर है, ये रखवा दिया था। और लेफ्ट में सर ये बोरवेल, ये हैंड पंप इंस्टॉल करवा दिया था एवरीवेयर इन एवरी एलसी सर। सो जो फैसिलिटी 1 in 10 किलोमीटर थी वो 1 in 2 किलोमीटर हो गई। तो अब क्या हो गया सर कि सारे के सारे लेबर इतना मतलब इतने खुश हो गए इस चीज से कि वो अब यहीं पे काम करना चाहते हैं। सो मॉडल हैज बीन टर्न्ड इनटू अ सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल। लेबर ही चाहता है यहीं पे काम करना, कहीं और जाना नहीं चाहता। तो सर ऐसी इनिशिएटिव हमें भी सर अपने सेक्शन में लेने चाहिए सो दैट कि वी कैन इंश्योर कि लेबर डज नॉट रन अवे और फंड डज नॉट गेट एलोकेटेड टू द अदर डिपार्टमेंट्स व्हिच इज गोइंग ऑन राइट नाउ। हम लोग प्रायोरिटी में फीचर करेंगे ही नहीं सर कभी। मैं आपको लिख के दे दूं सर ये चीज, वी आर नेवर इम्पोर्टेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, वी नेवर आर। नहीं तो व्हाई आर अदर डिपार्टमेंट्स तो इम्पोर्टेंट टू देम? बिकॉज सर उन्हीं के लोग हैं ना सर। रेलवे में इंडक्शन उनके लोगों से नहीं होता है, वो तो इंटरनली घूमते रहते हैं सर। सर रेलवे अलग हो गया, बाकी सब एक साथ हो जाते हैं ना सर यूजुअली। वो ठीक है, वी विल डील द इशू सूटेबली। जी सर। तो ये है सर सेंट्रल रेलवे का सर, और बस इतना ही है सर अभी। अच्छा, अभी इनको जरा क्वेश्चंस पूछने दीजिए जरा। फील्ड से जो लोग हैं, आईओडब्ल्यूज, एईएंस और डीएंस वगैरह जो अटेंड कर रहे हैं, प्लीज रेज योर क्वेश्चंस। आपको जो डाउट्स हैं वो पूछिए भाई। अभी इसमें जो लिस्ट है, जैसे पूना से कोई है एईएन, आपके दौंड एईएन हैं? एईएन दौंड? ये क्वेश्चन पूछिए आप लोग। कुछ भी डाउट होने से काइंडली रेज योर क्वेश्चंस। वर्क होता है उसका वेरिफिकेशन भी रेलवे वालों को भी करना पड़ता है कि इन्होंने इसका क्वांटिटी किया है। हेलो। यस यस प्लीज। सर मैं एडीएन वेस्ट पनवेल बोल रहा हूँ, बॉम्बे डिवीजन। सर ये मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे हमारे पास एलसी है, एलसी नंबर 3, जिसका ऑलरेडी बॉक्स पुशिंग हो गया है और एवरी ईयर देयर इज अ इशू ऑफ वाटर लॉगिंग। तो वहाँ के जो गांव वाले हैं, जो विलेजर्स है,
तो काफी हर्डल क्रिएट करते हैं हम लोग, मतलब वहाँ पे कि बॉट लॉगिंग की वजह से। तो हम लोग चाह रहे थे कि ड्रेन बनाने के लिए वहाँ पे कैन इट बी पॉसिबल कि हम लोग मनरेगा से ये ड्रेन वहाँ पे बनवा सके ताकि वहाँ पे वाटर लॉगिंग का इशू ना हो। बिल्कुल हो सकता और है। अगर करवा सकते हैं तो सर उसमें हम लोग, जैसे मैं एमपीडीओ से मिलूंगा हम्म। तो व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन और प्रपोजल मेरे तरफ से जाना चाहिए? जैसे कि एस्टिमेट हम लोग को देना होगा कि क्या मतलब अप्रोच क्या रहेगा मेरा ऑन फर्स्ट टाइम? अच्छा, आपका नाम जान सकता हूँ? सर संदीप सर। हाँ, संदीप सिन्हा। संदीप। अच्छा संदीप जी, देखिए पॉइंट ये है कि आपको पहले तो ये रियलाइज कराना होगा कि एस्टिमेट ये लोग बनाते कैसे हैं। देखिए आंध्रा में आई हैव टोल्ड कि वो ऑनलाइन ऐप बना रखी है, सॉफ्टवेयर बना दिए, और सारा वो लोग फोटो ऑनलाइन खींच लेते हैं जियो टैग करके और एस्टिमेट करा लेते हैं। राइट सर। यहाँ पर आपको ये पता करना होगा कि यहाँ का सिस्टम ऑफ एस्टिमेट जनरेशन है क्या, और क्या ऐप यूज करते हैं या हार्ड कॉपीज यूज होती हैं, ये पता करना होगा इसके लिए। इस सर ये मुझे वीडियो से ही पता चलेगा, है ना सर? यस एग्जैक्टली, ये वीडियो से ही पता चलेगा आपको। यस ओके सर, ओके सर, ओके। तो आप एक बार वो पता कर लीजिए और उसके बाद उनके जो इंजीनियर को ले जाइए साइट में और फिर एस्टिमेट बना के सब। अच्छा, ओके सर, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। राइट। नहीं वो 27 रह गए थे। हेलो हेलो, यस मैं अवधेश बोल रहा हूँ सर, ये गुलबर्गा सर। हाँ जी बोलिए सर। ये यहाँ पे लास्ट ईयर में मिला था, यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं सर यहाँ पे। हाँ, कर्नाटक में आता है सर मेरा जुरिस्डिक्शन। यस। तो मैं उनसे मिला था सर, मैंने पूरा एस्टिमेट भी दिया था, रेलवे के वर्क पूरी क्वांटिटी कैलकुलेट करके दिया था सर। यस। तो उन्होंने सर वो तो रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने बस प्लांटेशन कराया, वो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू करवाया सर। मैं यहाँ पे डीएफओ है उससे भी मिला था, तो अराउंड 10,000 प्लांटेशन मैंने करवाए थे सर। तो वो सर डीएफओ ने जब बात हुआ तो उन्होंने मनरेगा की लेबर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू रेलवे में कराया सर। सर मैं वो चीज सीओ से मैंने बात किया था सर कि डायरेक्ट हमारे, ताकि हम ही डायरेक्ट हमारे एरिया में ही प्लांटेशन कराए विदाउट फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के इन्वॉल्व किए, तो वो रेडी नहीं हुए सर इस पे। हाँ, वो इसलिए नहीं रेडी होंगे क्योंकि फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट को भी पैसा दे रहे हैं ना वो लोग। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी तो उनसे पैसा ले रहा है उसी में। आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी मनरेगा से पैसा ले रहा है और वो आपके में काम कर रहे हैं, इसलिए वो नहीं देना चाहिए। और भी सर जैसे मैंने वर्क, जैसे मेरा ये सेस रिपेयर वर्क, ड्रेन वर्क, और भी सब मैंने एस्टिमेट बना के दिया था लोकेशन वाइज। यहाँ पे क्या जो भी तालुका है सर, तालुके के हिसाब से मैंने वर्क आइडेंटिफाई करके दिया था इन लोगों को, पर सर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि अभी हम नहीं कर सकते, लेबर कॉस्ट ज्यादा है, वो उतने पे नहीं कर पाएंगे। तो सर उसके बाद आगे उस केस में क्या करना चाहिए सर? उस केस में आप लोग देखिए, सारे एजेंट्स को मैं ये कहूंगा पहले तो आप एमपीडीओ से मिल लीजिए, बीडीओ, एमपीडीओ, उन सबसे एक बार बात कर लीजिए और उनसे फिर आप पूछिए कि कैसे प्रोसीड करना। और कोशिश ये करिएगा क्योंकि इंजीनियर को भी मिल लीजिए, उनके जो आईओडब्ल्यू या पीडब्ल्यूआई जो हमारा होता है वैसे उनके इंजीनियर होते हैं, ईजीएस इंजीनियर, उनसे मिल लीजिए। इंजीनियर मेरा सर सीईओ से बात होने पर उन्होंने अपने इंजीनियर्स मेरे पास भेजे थे, ऑफिस में मैंने मीटिंग भी किया था, उनको सेक्शन में पूरा घुमाया भी था, ट्रॉली भी कराया था। कहाँ पे वर्क उन्होंने एस्टिमेट ही बना के अपने सीईओ को दिए थे सर, कि ये वर्क यहाँ पे करेंगे, इनका इतना एस्टिमेट आएगा। उनसे मेरे बात भी हुई थी उनके इंजीनियर से, पर सर सीईओ जो है वो रेडी नहीं हो रहे हैं इस केस में। तो अब आप एक काम करिए, वो कॉपी आप है ना सर को भेज दीजिए, ऊपर एक कॉपी मार्क कर दीजिए। अब अगर वहां हर्डल बन रहा है तो फिर वी विल टेक इट फ्रॉम द टॉप नाउ। अब आपने अपने लेवल पे इतनी मेहनत कर ली है, दैट इज कमेंडेबल। मतलब आपने इतना एस्टिमेट भी बनवा के रेडी करवा लिया, दैट इज गुड इनफ। अब तो सैंक्शन की बात है, तो सैंक्शन तो हम ऊपर से करवाएंगे, तो आप एक कॉपी हमारे को मार्क कर दीजिए। अब हम लोग फिर कमिश्नर मनरेगा या डायरेक्टर मनरेगा जो होंगे स्टेट के, उनसे फिर चेकअप लेंगे उस चीज के लिए। अच्छा, आपका डीएन कौन है? एक मिनट, प्रॉब्लम जिन्होंने प्रॉब्लम किसने रेज की थी? सेना ने? हेलो, ये प्रॉब्लम सर गुलबर्गा सर। अच्छा, अवधेश मीना, तो आपके डीएन कौन हुए? आपके डीएन साउथ योगेश सर। योगेश, जरा आप हायर लेवल पे मीटिंग करिए, मिलिए, और यहाँ से जो ये बता रहे हैं कि वो कमिश्नर नरेगा से बात होगी, इनका करस्पॉन्डेंस मंगा के, और आप जो है सीनियर डीएन से नरेगा कमिश्नर को चिट्ठी लिखिए नागपुर में, उसकी कॉपी सीनियर डीएन नागपुर को देके रखिए, तो वो जो लोकल जाएंगे तो वो वहां पे उठाएंगे, कॉपी सीईएसडी को देके रखिए।
जी सर, ये गुलबर्गा सर ये मेरा कर्नाटका का सर बेंगलोर में आएगा सर। यहाँ पे मेरे बैचमेट है सर बेंगलोर में, उनसे भी मैंने बात की थी सर इस रिलेटेड। तो उनके पास भी यही इश्यू आ रहा है। उनके भी मतलब लेबर कॉस्ट ज्यादा है तो वहाँ भी काम नहीं करा पा रहे सर। मेरे बेंगलोर में बैचमेट है सर। अरे अभी सब कराएंगे, इस बार अलॉटमेंट बहुत रहेगा। और जो बेंगलोर है ना, तो बेंगलोर में भी कमिश्नर, बेंगलोर में नरेगा का कमिश्नर होगा, उससे किया जाएगा। यस सर। और वहाँ पे जो आपका गुलबर्गा तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, गुलबर्गा में मीटिंग की क्या किसी ने? ये सर मैंने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है सर गुलबर्गा में, जो जनरल इन सबका देखता है मनरेगा फंड्स का, तो उससे मैंने की थी सर लास्ट ईयर। हाँ सर वो जनरल आईएएस ऑफिसर होता है। पहले मैंने डीसी से मीटिंग की थी। यस यस। तो डीसी ने उनके पास फॉरवर्ड कर दिया था मुझे सीईओ के पास कि मनरेगा का वो है, सीईओ ही देखते हैं सर। तो मैंने उनसे मीटिंग की थी, तो उन्होंने अपने इंजीनियर्स के वो सर्वे कराया था। तो इंजीनियर्स भी आए थे हमारे पास, मेरे पीडब्ल्यूआई और इंजीनियर्स अपने ट्रॉली करके सर्वे किया था क्या क्या काम वर्कआउट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने जो लिस्ट ऑफ वर्क और कौन से सेक्शन में कहाँ पे कौन सा वर्क है पूरा दिया था। फिर बाद में इंजीनियर ने उन्हें अपना एस्टिमेट बना के सीईओ को दिया था, पर उसके बाद कोई आगे नहीं बढ़ी सर बात। नहीं, सीईओ से दोबारा मिलना होगा ना फिर? मैं सीईओ से सर मिला था मैं दोबारा, तो उन्होंने एक ये चीज बताई थी कि लेबर कॉस्ट ज्यादा है तो ये वर्कआउट नहीं होगा मनरेगा फंड के थ्रू। बस इतना सा हुआ था सर। उसके बाद फिर हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से चेजअप करके प्लांटेशन वगैरह वो सब स्टार्ट करवा दिया था सर। अच्छा ठीक है। ये जरा गरड आप वो मीटिंग करो अपने लेवल पे और वो थोड़ा पता करो क्या इशू क्या है, समझा तो जाए। यस सर। लेबर कॉस्ट ज्यादा कैसे आ गई, वो तो उन्हीं का एस्टीमेट है, मैं समझा नहीं। मतलब कंपोनेंट ज्यादा है, क्या चीज है? मतलब सर उनकी डिमांड यहाँ पे जो लेबर है सर, वो जैसे जो एक्सपेंसिव है, मतलब जो मनरेगा के फंड के थ्रू जो लेबर को वो पेमेंट करना होता है वो एक्सपेंसिव है सर, तो इस वजह से वो नहीं कर पा रहे थे सर। उन्होंने कुछ दिया है क्या लिख के? लिख के सर कुछ नहीं दिया। मेरा जो लेटर था उसका रिप्लाई भी नहीं दिया, लिख के नहीं दिया सर। मैंने बात किया था, मैं इस बार भी सर वापस वही लेटर भेजता हूँ जो लास्ट ईयर भेजा था इस बार। नहीं, ये गरड के लेवल पे एक मीटिंग होने तो जरा जी उसके सर। नरेगा कमिश्नर को लिखा जाएगा। जी सर, एक लेटर बना लेता हूँ सर मैं, इनका कॉपी लेके। चलिए और अपना प्रॉब्लम बताइए। Anybody else? आपका भुसावल में कोई प्रॉब्लम आ रहा है? भुसावल तो लास्ट ईयर प्लांटेशन वगैरह करा चुका है। यस सर, ये लास्ट ईयर प्लांटेशन हुए थे सर, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट और नासिक में। नांदगांव में इंटेंसिव हुआ था, 40 गांव सेक्शन में, 40 गांव दुनिया में। तो इस साल भी वही, मतलब प्लांटेशन छोड़ के तो वो बाकी वर्क नहीं लेते हैं सर। हम लोगों ने ड्रेन क्लीनिंग और ब्रिज के लिए लिया था सर। इसके एस्टिमेट भी बन गए थे सर, जो डिसिल्टिंग ऑफ ब्रिजेस, माइनर ब्रिजेस के, पर वो वर्क उन्होंने सैंक्शन नहीं किए। आपने किसी से आगे मीटिंग वगैरह की है ना, कहाँ पे रुका है? हाँ, एक कमिश्नर से बात हुई थी सर, डिप्टी कमिश्नर मनरेगा से नागपुर में भी बात हुई थी सर। और हमारे बंदे भी गए थे, IOW गया था और एक AN भी गया था, मंडेरा गया था लास्ट ईयर। इस बार भी कर रहे हैं सर, अभी करते हैं। हाँ ठीक है। और बताइए भाई, किसी का हो तो इशू जल्दी से, फिर देन वी फिनिश इट। पूना डिवीजन में कुछ किया गया है क्या? पूना हेलो, पूना में कोई इनिशिएटिव लिया गया है क्या इस मामले में? नहीं सर, अभी तो नहीं। हम इसको चेक करके सर आपसे बात कर लेंगे सर, फीडबैक देते हैं सर इसको। हाँ करो जरा। मुझे लग रहा है दिस इज डूएबल। और ये हेडक्वार्टर से हम देखते हैं कि वो लिस्ट ऑफ वर्क्स में बेसिकली ऐड कराने वाली बात है और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी डिसाइड करने वाली बात है। दो ही चीजें हेडक्वार्टर से। सर ठीक है जी सर।
So now, can we finish the meeting now? I think we can close the meeting, sir. यदि किसी को और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो. Okay, bhai. This was an excellent presentation by Mr. Pratham Agarwal. He has given lot of insight into this subject, which is almost not so well known to all of us. So I compliment him for giving this valuable inputs and guiding the participants. And I will request all the participants, if they have any issues, take the number of Mr. Pratham Agarwal and directly contact him. I will request all the senior DNs to mobilize their field officials. They should have that meeting with the BDO or whatever designation is there and the NREGA authorities. And wherever they come across any stumbling block, they should immediately contact Mr. Pratham Agarwal and the CEST Mr. Chaturvedi. So in fact, I had kept this presentation in view of the fact that this year the grants are going to be ruthlessly cut because of the funds crunch that has come into being because of the COVID situation in the country. So our grants are going to be reduced like anything. So at least to some extent we can supplement it through the alternate source of NREGA. With this view, it was organized. So this seminar was organized under the aegis of IPWE Central Railway on on behalf of IPWE. I compliment Mr. Pratham Agarwal once again and announce an award of ₹5,000 to him. Let us compliment him with big round of applause. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. This we end the meeting. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you, sir.